of IEEE KEYS 2021 to 2022, and I'll be your host for this event. And on behalf of IEEE PF KEYS Student Branch, I humbly welcome you all to this webinar. Mr. Zahid Hussain is an extremely accomplished personality, being lecturer at DHA Safa University, researcher in the field of data science with machine learning and natural language processing, particularly related to machine translation and business analytics. Thank you very much, sir, for joining us today. Before we begin, all our participants are requested to keep your mics and videos turned off during the entire session. We will have a question and answer session at the end in which you can raise your hand and the host will give you the opportunity to ask your questions. You can also send any questions or messages to the host through the chat with your name and affiliation at the end. Now, without further ado, we'll hand over the control to our most esteemed speaker, Mr. Zahid Hussain. The platform is all yours, sir. ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी आवाज़ सारे पार्टिसिपेंट्स को क्लियर है? कैन एनीवन एंडोर्स दैट आई कैन ऑडिबल? ओके, थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Thank you, Navera and the whole IEEE PF KIT Student Branch team and the PF KIT Institute to invite me for the delivering session. Once again, I remember I have delivered the session last year as well during the COVID session when Abdurrahman was the chair of the branch. So it's an honor for me that you have invited me again, and it's all about the previous webinar feedback and so on. So today we have current trends and technological requirement about the data science along with the machine learning, and that is our today's topic. Actually, this domain actually plays a pivotal role in interdisciplinary technologies, because data science is not all about the computer science. It has main domain interest in different fields. So every discipline, whatever is a medical or banking, finance, or any other field, this is the main requirement right now to learn and adopt in the field. So in today's webinar, our outcome will be to learn about the data science, what it is, and how can we implement uh, in our domain, in our businesses, or in our data that we have in our organization, and what type of technologies we can implement to extract those business values, and what are the resources available right now to learn the skills about the data science and machine learning. So our presentation covers all these components, and I will show an overview of the webinar that initially we will discuss about the data science, and then we'll move forward about discuss the data that in data sciences, what type of data we can utilize and how to understand the data, because it's all about data.
if you are looking a career in the field of data science or even machine learning, or in broader way you can say that I can be a artificial intelligence engineer in the future, wherever you are doing bachelor or a master, or you are looking the career and right now you are in the intermediate. But if you are looking your career in the artificial intelligence, you have to be understand the data. Without understanding data, you are very good at the technologies, tools, and science, and you have no knowledge about the data and its articulates and its insights, then uh, you are nothing. You will not get the results as you required. So we will discuss data first, and then after that we will discuss about the science. Okay, right now here science is all about the machine learning. The data science part in which we will discuss the science, it's all about the machine learning algorithms and different tools which can be utilized to extract the insights from that data. So the second part will be the science, and after that we will see the tools and the technologies uh, right now which supports these experiments through which we can run the experiments for the data and machine learning. After that we will see right now how much work has been done currently in Pakistan as well as in the world, and we can get motivated from that work. And right now everyone utilizing the AI applications, you, me, all. If anyone have a smartphone in your hand, you are the user of the artificial intelligence, you are the user of all the ML and DL applications right now. This is how AI has covered we all, right? Okay, as we have a set and QA session at the end, and if you have any questions in your mind while the presentation, kindly note that at your end on any paper, and let me ask at the end of the presentation. We will discuss in detail. So okay, because this is an introduction, and after that when we are discussing about the algorithms and all, then we can go with the mix of the English and Urdu, so that we can understand concepts clearly, right? Okay, actually, data science is nothing. It's an interdisciplinary field. As I already told you in the introductory slide, that uh, data science has played pivotal role in different fields. So it's a international field that uses scientific methods, which are the machine learning methods, processes, the life cycle of the data science that we will discuss in the later slides, and the algorithms and the system to extract knowledge and insights. Actually, this is the main point where the data science plays a role of its magic. Somewhere we can see that the data science is like a magic. It's not a magic. Actually, it's uh, results of the insights. It's insights results, that how data reports those results. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि जैसे पाकिस्तान की एक अपनी डेटा रिपोजिटरी है जो कि उन्होंने 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च की थी, वहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट इंडिकेटर्स का डेटा है. अगर आप वहां पे पोर्टल पे जाएंगे ना, आप ये देखना चाहते हैं कि पावर्टी इंडिकेटर्स वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, आप वहां पे जाके वो देख सकते हैं. एक्चुअली हो क्या रहा है, डिफरेंट अल्गोरिथम्स एंड प्रोसेस हैं जो कि अप्लाई हो रहे हैं उस डेटा के ऊपर, और वो डेटा आपको इंसाइट्स दिखा रहा है. अच्छा, अगर हम इंसाइट्स को समझने के लिए एक बिल्कुल इनिशियल एक बेस लाइन एग्जाम्पल पे जाते हैं. ठीक है, आपके पास एक एक्सेल शीट है, एंड आपके पास दो तीन वेरिएबल्स का डेटा है, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स का डेटा है कि स्टूडेंट नेम एंड इट्स ग्रेड, ठीक है, इट्स एज एंड इट्स करंट डोमेन ऑफ स्टडी, दैट वो बैचलर कर रहा है या मास्टर कर रहा है या इंटरमीडिएट कर रहा है. ठीक है, अब वो आपके पास एक रॉ डेटा है स्टूडेंट के हवाले से. अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताएं वो बच्चे जो बैचलर कर रहे हैं उनका रिजल्ट शो करें. तो आप क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे और बैचलर को सिलेक्ट करेंगे और वो बच्चों का लिस्ट आपके सामने आ जाएगी. तो वो क्या
वो एक सिंपल अंडरस्टैंडेबल डेटा है, लेकिन ये है कि आपको एक इंसाइट नजर आ गई, मीन्स के जो आप डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक सिंपल एनालिसिस फेज है कि आपने डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये हम बेसिक से समझते आए हैं। लेकिन इनसाइट इज एडवांस लेवल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम इनसाइट्स कीवर्ड वहां यूज करते हैं जहां पे आपके पास डेटा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, आपके पास सारे 0 एंड 1 नंबर्स हैं एंड डेसिमल पॉइंट नंबर्स हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पे मैथमेटिकल मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल या जो डेटा साइंस के मॉडल्स हैं वो अप्लाई होके आपको रिजल्ट्स शो करते हैं। अच्छा, उन रिजल्ट्स को डिस्प्ले और रीड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल लैंग्वेज यूज नहीं होती, उसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकल लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोबेबिलिटीज होती हैं और मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जो कि उन लीनियर इक्वेशंस के थ्रू ही हम उस डेटा को रीड कर सकते हैं। ओके, सो इट्स दिस इज डेटा साइंस, और हम डेटा साइंस के जो एल्गोरिथम है वो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर अप्लाई करके रिजल्ट्स निकाल रहे थे। अच्छा, स्ट्रक्चर का मतलब है टेबुलर फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स आर डिफाइंड इन द डेटा सेट एज वेल। अनस्ट्रक्चर्ड का फॉर्मेट है कि देयर इज नो टेबुलर फॉर्मेट ऑफ द डेटा, जस्ट लाइक फेसबुक ट्वीट्स, फेसबुक कमेंट्स, ट्विटर ट्वीट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास इमेजेस का डेटा सेट है, ये जितने भी डेटा सेट्स होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स कहलाए जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि एनालिसिस पहले भी होती हुई आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनालिसिस नहीं होती थी, एनालिसिस 1950 में भी होती थी, 60 में भी होती थी, लेकिन डेटा साइंस की जरूरत क्यों पड़ी, बिग डेटा जो इससे रिलेटेड कीवर्ड है उसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, और ये अच्छा उसका रीजन ये है कि जब हम डेटा एनालिसिस करते थे तो उस वक्त जो साइज ऑफ डेटा थी वो बहुत स्मॉल थी, और वो इतना डेटा था कि आप नॉर्मली एक्सेल पे ओपन करके उसके, और वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा भी था कि उसको एक्सेल के ऊपर अप्लाई, फार्मूलाज अप्लाई करके, डिफरेंट एनालिसिस फार्मूला अप्लाई करके आप उसको जो है रिजल्ट्स देख सकते थे। लेकिन डेटा साइंस ने वहां पे स्टेप रखा जहां पे डेटा भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है और उसकी साइज इतनी ज्यादा है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर उसको प्रोसेस भी नहीं कर सकता। तो वहां पे क्या हुआ, डेटा साइंस ने अपना रोल प्ले किया। वहां पे जो है हम डेटा के ऊपर आके, एक हमारे पास 20 वेरिएबल्स का डेटा है, 20 वेरिएबल्स के मीन्स के नंबर ऑफ कॉलम्स आपके डेटा सेट के अंदर कितने, जैसे स्टूडेंट का मैंने डेटा से बताया था ना, स्टूडेंट नेम, इट्स ग्रेड पॉइंट, इट्स बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो ये 3-4 वेरिएबल थे। तो इसी तरह कोई भी डेटा सेट होता है तो उसके मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि उसके वेरिएबल्स या फीचर्स डिफाइन कर रहे होते हैं। तो डेटा साइंस वहां काम है जब आपके पास बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स डेटा सेट में अवेलेबल हो गए और एक बहुत ही बड़ा डेटा आपके पास आने लगा, और वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है और नॉर्मल कंप्यूटर उसको प्रोसेस भी नहीं कर सकता। मीन्स कि एक इतनी बड़ी CSV एक्सेल फाइल है, जब आप खोलने लगते हैं तो आपकी एक्सेल जो है वो हैंग हो जाती है, ठीक है, वो नहीं खोल पाती। तो उस तरह के डेटा के ऊपर अप्लाई करने के लिए, काम करने के लिए फिर डेटा साइंस आई, और उसको प्रोसेस करने के लिए फिर मैथमेटिक्स को यूटिलाइज किया गया, स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूटिलाइज किया गया, एंड देन जो है उसके ऊपर प्रेडिक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग होने लगी। अच्छा, ये हम अभी इस स्टेप पे कह सकते हैं कि जो स्टेजेस हैं डेटा के, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उन किन स्टेजेस के ऊपर, अच्छा अभी भी कुछ ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पे डेटा साइंस जो है वो इफिशिएंट नहीं यूटिलाइज हो पा रही, जहाँ पे फिर हम आगे एक एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये कि जितना डेटा साइंस का डोमेन है हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल हमारे पास ये होता है कि डेटा साइंस जो है वो वैल्यू ऐड कैसे करेगी बिजनेस के अंदर। हम कह तो रहे हैं कि भाई अगर आपका बिजनेस है और आपके पास डेटा अवेलेबल है तो डेटा साइंस आप अप्लाई करें, आपको बिजनेस वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो कैसे बिजनेस वैल्यू मिलेगी, किस तरह से डेटा साइंस अप्लाई की जाएगी, और क्या कंपोनेंट्स हैं जिनको यूटिलाइज करके हम वैल्यू ले सकते हैं, लेट्स डिस्कस दोस्त। अच्छा देखें, बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे डेटा साइंटिस्ट के लिए, ठीक है,
तो आपसे एक दो सवाल इस तरह से किए जाते हैं जो कि जेनरिक होते हैं और सबसे किए जाते हैं कि आप जो है हमारे बिजनेस में वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो आपको तब पता होगा जब आपको दो चीजों का, अभी मैंने यहाँ पे सामने 5 कंपोनेंट लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें से दो चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होनी चाहिए आपको। फर्स्ट, डोमेन एक्सपर्टीज। आप ये देखें कि देखें ना, अगर मैं डेटा साइंटिस्ट हूं तो मैं किसी पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर मेरी कमांड होगी। फॉर एग्जांपल मैं एनएलपी के ऊपर कमांड रखता हूं, या मैं बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर कमांड रखता हूं। तो अगर कोई ऐसा डेटा साइंटिस्ट है जिसको बैंकिंग का काम दिया गया, तो उसको जो डोमेन नॉलेज है उस फील्ड की, वो कंप्लीट मालूम होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल के अंदर डेटा साइंस अप्लाई करने जा रहे हैं, आप जो है कैंसर डिटेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, और या आप ट्यूमर डिटेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, या किसी और मेडिकल फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस फील्ड की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग के अंदर काम करने जा रहे हैं तो बैंकिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एकेडमिया में काम करना चाह रहे हैं तो एनएलपी है, या जो आप फेसबुक के ऊपर काम, सोशल मीडिया के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो आपको डिफरेंट रीजन्स की और डिफरेंट डोमेन्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज द डोमेन नॉलेज। द सेकंड, यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स के बगैर एक आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपको एक डेटा दिया गया है और आप उसको खोल के देखते हैं कि आप समझ में नहीं आता, अच्छा डेटा को विजुलाइज करने के लिए कि अच्छा ये डेटा जो है इनसाइट्स दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये डेटा इसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं है, आप सारे के सारे मैथमेटिक्स के लीनियर फंक्शन अप्लाई करते हैं टू विजुलाइज दोज इनसाइट्स। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जो है आप उनको कैलकुलेट करके डिस्प्ले कराते हैं, विजुलाइज करवाते हैं। एडवांस कंप्यूटिंग, वो तो जब आपको डेटा अंडरस्टैंड हो गया और उसके बाद जब आप एल्गोरिथम रन करने जा रहे हैं, तो आपको एक कंप्यूटेशनल रिसोर्स चाहिए टू एग्जीक्यूट दैट एल्गोरिथम। बट बिफोर एग्जीक्यूटिंग यू हैव टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिथम आई हैव टू अप्लाई ऑन दैट डेटा सेट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस वैल्यू एडिशन। तो उसके लिए आपको डोमेन नॉलेज एंड मैथमेटिक्स, रियली इंपॉर्टेंट डोमेन नॉलेज मैथमेटिक्स, राइट। तो ये अच्छा, डेटा इंजीनियरिंग एक्चुअली यहाँ पे ये होता है कि जब आपके पास डेटा सेट अवेलेबल होता है और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द फीचर्स अवेलेबल होते हैं, अच्छा आप सारे फीचर प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि यू हैव अ लिमिटेड पावर रिसोर्स, ठीक है। और 1000 फीचर्स हैं, और आपको ये देखना होता है कि कौन से फीचर्स हैं जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स बिजनेस वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो फिर आप क्या लगाते हैं, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन, दो इंडिकेटर हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो कैलकुलेट होते हैं। तो फिर कोरिलेशन निकालते हैं वेरिएबल्स का आपस में, जो आप वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है, हाईली कोरिलेटेड है, ठीक है। मींस के एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, मींस दे आर हाईली कोरिलेटेड, राइट। तो जिसके दरमियान कोरिलेशन बहुत ज्यादा होती है वो वेरिएबल्स पिक किए जाते हैं, बाकियों को ड्रॉप किया जाता है, मींस के डेटा सेट को रिड्यूस किया जाता है, जिसको डायमेंशनलिटी रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम्स, पीसीए है और भी बहुत सारे एल्गोरिथम है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, और भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स अवेलेबल। अच्छा, जब आपने ऊपर वाले प्रोसेस समझ लिए कि ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो आप स्टार्ट जब करेंगे डेटा साइंस प्रोसेस को, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स लेंगे। आप एक क्लाइंट के पास गए, यहाँ बिजनेस ओनर के पास गए, आपने उसको बताया कि भाई हम आपकी कंपनी में, यहाँ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द डेटा साइंस इन इम्तियाज सुपरमार्केट। सब जानते हैं, ठीक है, इम्तियाज सुपरमार्केट के पास कितना डेटा अवेलेबल है, ठीक है। दे आर डूइंग डेटा साइंस एज वेल, ठीक है। आप उनके पास जाते हैं तो आप उनसे बिजनेस रिक्वायरमेंट लेंगे पहले कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है, आपको रिक्वायर्ड क्या है, आप किस तरह के रिजल्ट चाहते हैं। तो आपको बताएंगे हमें इस तरह के कस्टमर्स आइडेंटिफाई करके दे दें, हमें इस तरह की प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करके दें। मुझे बता देंगे हमारी समर के अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा जो है वो सेल होती हैं, विंटर के अंदर कौन सी ज़्यादा होती हैं, प्राइम कस्टमर्स हमें हाईलाइट करके दे दें, ठीक है। और रेगुलर कस्टमर्स हमें आइडेंटिफाई करके दें, कस्टमर चर्न हमें निकाल के जो है आइडेंटिफाई करके दे दें। तो डिफरेंट बिजनेस जो है केपीआईज होती हैं, वो आपको रिक्वायरमेंट के अंदर बताई जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, फिर उन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को देख के आप डेटा एक्विजिशन करते हैं, मींस डेटा कलेक्ट करना
शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ये बिजनेस जो है KPIs अचीव करनी है, अच्छा इन KPIs के लिए मुझे ये डेटा वेरिएबल्स चाहिए, तो फिर आप बताते हैं कि भाई ये वेरिएबल्स जो है हमें चाहिए, तो वो आपको डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, और उसके डेटा सेट के ऊपर आप कुछ प्री प्रोसेसिंग जो है स्टेप्स अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर अच्छा लाजमी नहीं है कि हर कस्टमर का डेटा फील्ड का जो है ना अवेलेबल हो, तो कुछ कॉलम्स के अंदर मिसिंग वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, आप वो मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करते हैं। तरीका कर क्या है हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। फेक रिव्यू, अगर हम यहाँ पे देखें कुछ डेटा, अगर रिव्यूज की बात करते हैं तो फेक रिव्यूज भी होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना होता है। अननेसेसरी डेटा ऐड होता है, तो डिफरेंट प्रोसेसिंग एल्गोरिथम अपना होते हैं, आपका जो है डेटा को नॉर्मलाइज करना होता है या डिफरेंट और चीज़ें करनी होती हैं, तो वो प्रोसेसिंग का पार्ट आप कंप्लीट करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद जो है जब आपके पास डेटा रेडी टू एग्जीक्यूट हो जाता है, एल्गोरिथम के लिए रेडी हो जाता है, तो उस वक्त उसके ऊपर जो है वो डेटा एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। वहां पे जो है स्टैटिस्टिक्स के एल्गोरिथम लगाए जाते हैं और मैथमेटिक्स के एल्गोरिथम लगाए जाते हैं, लीनियर इक्वेशंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, टू सी द इनसाइट्स। उस वक्त देखते हैं कि अच्छा अब ये जो डेटा है वो कुछ दे रहा है, कुछ बिजनेस वैल्यू दे रही है, वो डिफरेंट ग्राफ्स के थ्रू जो है आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा हाँ ये डेटा कुछ ना कुछ हमें दे रहा है। हाईली कोरिलेशंस हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सही आ रही है, मीन एंड मीडियन की वैल्यूज जो है वो सही आ रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस वक्त के ओके हम जो है इस डेटा को फर्दर अब इसके ऊपर एल्गोरिथम लगा सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप के अंदर डिसाइड होता है कि अच्छा ये जो डेटा सेट है हमारे पास वो काम का है या नहीं है, ठीक है। एंड देन आप मॉडलिंग पे चले जाते हैं, आप जो भी एल्गोरिथम लगाना होता है डिपेंड्स अपॉन कि आप फोरकास्टिंग करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, या कस्टमर प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, आप उस टाइप का मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। एंड देन द इम्प्रूवमेंट इन दैट एल्गोरिथम इन ऑप्टिमाइजेशन फेज। अच्छा, ये आपने साइकिल समझ ली, तो अब कुछ बच्चों में या कुछ कैंडिडेट्स के अंदर जो है जो अपीयर है यहाँ पे एक कंफ्यूजन सी होती है, क्योंकि डिफरेंट कीवर्ड्स जो है बज़वर्ड्स मार्केट के अंदर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, जो है रूटीन राउट कर रहे होते हैं। तो आप ये समझ, अच्छा डेटा साइंटिस्ट भी है, डेटा इंजीनियर भी है और डेटा एनालिस्ट भी है, ये डिफरेंट हैं और तकरीबन ये सारा काम कर रहे होते हैं। ऐसी एक बात जो है वो सुनने में आती है, इवन जब मेरे बच्चे जो है बात करते हैं, सर ये डेटा एनालिस्ट भी यही काम कर रहा होता है, डेटा साइंटिस्ट भी। अच्छा, हमारा अलमिया यहाँ पे ये है कि हम ऑलराउंडर जो है ना वो बनना पसंद करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब ये है कि उनकी हर एक प्रोसेस की एक डिफरेंट डिवीजन होती है, ठीक है। जैसे अगर हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अलग लोग होते हैं, और डिज़ाइन वाले अलग लोग होते हैं, डेवलपमेंट के अलग लोग होते हैं, और क्यू एंड टेस्टिंग एक डिफरेंट अलग सेपरेट लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउसेज, वो सारा काम जो है ना रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, क्यूए, डिप्लॉयमेंट, सारा एक ही काम बंदे से काम ले रहे होते हैं, तो वो प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है। तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ओरिएंटेड है वहाँ पे डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या समहाउ ML इंजीनियर की भी डेजिग्नेशंस आ रही होती हैं। वो उनकी एक डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। जो डेटा साइंटिस्ट काम करता है वो डेटा इंजीनियर नहीं करता, जो डेटा इंजीनियर करता है वो डेटा एनालिस्ट नहीं करता काम, ठीक है। तो इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, यू विल बी क्लियर कट हेयर कि अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना है तो ये हमें चाहिए, डेटा एनालिस्ट बनना है तो हमने इस तरफ जाना है। अच्छा, जो डेटा एनालिस्ट होता है ना उसका बेसिक काम होता है डेटा कलेक्ट करके एनालाइज। अच्छा, जो यहाँ पे एनालाइज है ना डेटा एनालिस्ट की, ये सिंपल जो है बिजनेस एनालिटिक्स है, ठीक है, जहाँ जिसको हम पावर बीआई भी कह सकते हैं, या टैबलो के थ्रू जो है ये सिंपल रिपोर्ट्स जनरेट करके जो एक्सेल के अंदर फिल्टर्स लगाए जाते हैं, जो रिपोर्ट्स क्रिएट की जाती हैं, ये उस तरह की एनालिसिस वगैरह कर रहे होते हैं। ये कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई नहीं करते, ये कोई भी डेटा साइंस की अप्रोच यूज नहीं करते, ये मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करते, ये मैन्युअली स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं करते। ये बने बनाए एल्गोरिथम जो एक्सेल के अंदर फार्मूलाज हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, या पावर बीआई के जो फार्मूलाज हैं वो यूज करके रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो डेटा इंजीनियर है इसका काम सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रिपेयर करके देना होता है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा, बहुत जो है बड़ी साइज का जो डेटा होता है, और उसको ये प्रोसेस करके
डेटा साइंटिस्ट को प्रोवाइड कर देता है कि ये, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा डेटा होता है कि बहुत बड़ी साइज होती है और वो बिल्कुल उसके अंदर नॉइसेस एंड एक्स्ट्रा एंड मिस हैंडलिंग डेटा बहुत ज़्यादा होती है। तो डेटा इंजीनियर वहाँ पे आके जो है अपने कुछ हडूप और अपाची के कुछ एल्गोरिथम्स हैं और स्टेप्स हैं जो अप्लाई करके उसको जो है एक प्रोसेस के लिए रेडी करके दे देता है। तो डेटा इंजीनियर जो है सिर्फ और सिर्फ फीचर इंजीनियरिंग या डेटा की प्रिपरेशन में जो है वो काम कर रहा होता है। नाउ द डेटा साइंटिस्ट, अब ये जो पोस्ट है या ये जो डेजिग्नेशन है, ये जो पर्सन है, यही एक्चुअली काम कर रहा होता है बिजनेस वैल्यू एडिशन का। जो डेटा प्रिपेयर होके, जो डेटा इंजीनियर डेटा प्रिपेयर करके डेटा साइंटिस्ट को देता है, उसके ऊपर डेटा साइंटिस्ट मैथमेटिक्स भी अप्लाई करता है, करके देखता है, स्टैटिस्टिक्स भी अप्लाई करके देखता है, और प्रोग्रामिंग मींस के मशीन लर्निंग के मॉडल भी अप्लाई करके वो फिर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है और हाइपोथेसिस रन करते हैं फॉर द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। क्योंकि डेटा खुद थोड़ी ना बता रहा होता है रिजल्ट्स के ये डिसीजन लेने, हमें हाइपोथेसिस रन करने पड़ते हैं, ठीक है, और उन हाइपोथेसिस के ऊपर जो है हम फिर डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट फेज जो है हमारा प्रेजेंटेशन का वो कंप्लीट हो चुका है रिगार्डिंग डेटा साइंस। अब डेटा साइंस हमने चीज़ें समझ ली, बेसिक सी चीज़ें हैं। अब हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं, डेटा है एंड द साइंस है, डेटा मीन्स के किस तरह के डेटा के ऊपर हम काम किया जा सकता है, एंड इन साइंस के एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ओके, सो अच्छा, डेटा जो है वो टाइम टू टाइम उसने अपनी डायनामिक्स जो है वो चेंज की हैं बहुत ज़्यादा। शुरू में 80s के अंदर जो है एक फेमस जो है यूज़ होता था डेटा के हवाले से, 3 V's ऑफ द बिग डेटा, ठीक है। उस वक्त जो 3 V's थे हमारे पास, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा था, और डिफरेंट अपना सोर्सेज से डेटा आ रहा था, आपका सोशल मीडिया से, मोबाइल प्लेटफॉर्म से, कंप्यूटर नेटवर्क से, या अनस्ट्रक्चर डेटा, वेब से डेटा आ रहा था। वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रही थी, एंड देन द हाई स्पीड ऑफ द डेटा मीन्स के डेली जो उसका डेटा की जो फ्लो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो रहा था। मीन्स के हर 1 घंटे के अंदर जो है एक पीटाबाइट्स के अंदर डेटा जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो उस वक्त इन 3 कैटेगरीज ऑफ द डेटा के ऊपर काम हो रहा था। लेकिन जैसे ही डेटा साइंस की जो है फील्ड इमर्ज होने लगी और उसने जब डेटा को एक्सप्लोर करना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया, तो डेटा के अंदर जो है कुछ चीज़ें एक्सप्लोर होने लगी कि डेटा जो अभी आ रहा है 3V's के अंदर, ये इनकम्प्लीट डेटा है, हमें डेटा को और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो देन हमारे पास 4V's आ गई, ठीक है। 4V's के अंदर इनिशियली वॉल्यूम, वेराइटी एंड वेलोसिटी तो था, अब हमारे पास वेरासिटी आ गई। अच्छा, जो डेटा है, वेरासिटी का मतलब ये कि द डेटा दैट वी हैव इट्स अ ट्रस्टवर्दी और नॉट। ट्रस्टवर्दी का मतलब ये है कि क्या इस डेटा के अंदर इनसाइट्स हैं भी या नहीं, ठीक है। ये जो डेटा अवेलेबल है ये जो है एक सही सोर्स से लिया गया है या नहीं, मीन्स के अगर हमारे पास यूजर रेटिंग्स का डेटा है तो उसके अंदर फॉल्स रेटिंग्स तो नहीं है, बायस रेटिंग्स तो नहीं है, क्या ये डेटा सही है, तो वो एक इंडिकेटर जो है एड हो गया डेटा के अंदर। अच्छा, देन जैसे ही डेटा साइंस अपने एक बिग पैस पे पहुंच गई तो हमारे पास एक और जो है इंडिकेटर एड हो गया डेटा के अंदर, दैट इज वैल्यू, कि बस ठीक है, वेलोसिटी, ओके, राइट, डेटा जो है वो ट्रस्ट वर्दी है और जो है वैलिडेटेड डेटा है और उसके अंदर बिजनेस वैल्यू अपना जो है सही से कलेक्टेड है। देन द फिफ्थ वैल्यू इज, क्या ये डेटा वैल्यू दे सकता है या नहीं दे सकता। आपने बहुत बड़ी अमाउंट का डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। अब डेटा साइंटिस्ट इसके ऊपर जो है एक स्टेप अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह अप्लाई करके, कि ये जो डेटा है ऑर्गेनाइजेशन ने दे देती है, क्या ये वैल्यू ऐड करेगा या नहीं ऐड करेगा बिजनेस में। अगर वो वैल्यू ऐड करता है तो उसको प्रोसेस करते हैं, अदरवाइज उसको लीव। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज हुई 2000 और 2015 के दरमियान इन अमेरिका, जिन्होंने डेटा साइंस के ऊपर काम किया, और बहुत सारी कंपनीज डाउन हो गई बिकॉज उनके पास जो डेटा अवेलेबल था वो कोई बिजनेस वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। तो डेटा साइंस इज अ रिस्की जॉब,
और जो है बहुत सारी कंपनीज कराची में भी जो है उन्होंने जो है एआई की डिवीजन स्टार्ट की है, लेकिन दे आर स्टिल जो है कंप्रोमाइजिंग देयर फील्ड ऑन द वैल्यू, द फिफ्थ इंडिकेटर ऑफ द बिग डाटा, के जो उनके पास डेटा अवेलेबल है क्या वो वैल्यू दे सकता है या नहीं दे सकता। सो दिस इज अबाउट दी डेटा। तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा जिस तरह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वो 1 मिनट के अंदर आपके पास कितना पीटा बाइट्स ऑफ द डेटा जनरेट हो रहा है विद इन मिनट। ठीक है, तो फेसबुक अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं कि 2020 के अंदर फेसबुक 1.3 मिलियन लॉगिंग यूजर जो है थे, और 2021 में 1.4 14 लाख जो है वो यूजर्स बढ़ गए, मीन्स कि एनुअली इतना इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली ऑल दी सोशल मीडिया एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो इस तरह का डेटा आपके पास आएगा, तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज to apply these knowledge. Right now every digital organization which exists in the international market, they have data science division and they work on that. अभी जो है आप ये समझ रहे हैं, हमारे एक उस्ताद हैं, उनकी एक दोस्त की कंपनी थी, दे सेड कि भाई पाकिस्तान के अंदर हमने एक कंपनी लॉन्च करनी है, हमें 500 डेटा साइंटिस्ट चाहिए, 500 डेटा साइंटिस्ट। लेकिन जो उनका मार्क है कि हमें इस तरह के लोग चाहिए जिसके अंदर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मोर इम्पोर्टेंटली वो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट यू वुड बी गुड एट द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, डेटा सेट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बैचलर्स या मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ चुके होंगे, या वैसे ही सेल्फ स्टडी का दौर है जो हमारे पास, ये पोस्ट कोविड सिचुएशन जो भी है, अब हर बंदा जो है वो खुद स्टडी कर रहा होता है ऑनलाइन, और डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो हर किसी ने इस तरह के देखा होगा। तो ये एक्चुअली लेआउट होता है डेटा साइट का, अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा है टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। आपके नंबर ऑफ सैंपल्स जिसे हम कहते हैं, ये नंबर ऑफ रोज होती हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनको हम फीचर्स कहते हैं। ये एक फ्लावर का डेटा सेट है जिसको आयरिस कहते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन के लिए ये डेटा जनरेट हुआ था, और मोस्टली एकेडमिया में इस डेटा सेट के ऊपर जो है वो एग्जाम्पल्स रन किए जाते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में या बाहर की यूनिवर्सिटीज में अगर आप कोर्सेरा पे भी देखेंगे तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को रन किया जाता है। तो ये वैल्यूज हैं, और ये इसकी लास्ट जो लेबल कहा जाता है ना, वो एक्चुअली क्लास डिफाइंड होती है या कैटेगरी डिफाइंड होती है। अगर मैं कहता हूँ कि ये दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना, दिस इज एप्पल, तो जो मैं उसको वैल्यूज को, अगर कोई मुझे कहता है कि यार इस तरह का फ्रूट, तो मैं कहता हूँ ये एप्पल है, इस तरह का फ्रूट ये बनाना है, इस तरह का फ्रूट ये ऑरेंज है। तो आप जो उसकी जो एट्रीब्यूट्स को देख के जो आप उसको क्लास डिफाइन करते हैं, तो ये जो है एट्रीब्यूट्स हैं, या उसके कॉलम्स या फीचर्स कह लें, एंड देन द लास्ट कॉलम इज द लेबल या उसके क्लास। तो ये क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है। इस तरह के डेटा सेट्स को आप प्रोसेस करते हैं और फिर आप उसको जो है आप आगे एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये डेटा सेट अवेलेबल है। अब ये एक फेमस डेटा सेट है, तो ये कंप्लीट है, इसके अंदर कोई इस तरह की एनोमलीज वगैरह नहीं होती। लेकिन जो नॉर्मली डेटा सेट जनरेट होते हैं, मे बी वहाँ पे जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड रो को कंसिडर करते हैं ना, तो मे बी सैपल विड्थ के यहाँ जो 3.0 में भी एक वैल्यू ना हो अवेलेबल, ठीक है, मिसिंग वैल्यू हो। तो इस तरह के भी हो सकते हैं। जब आपके पास डेटा सेट अवेलेबल होते हैं तो बाज़ टाइम जो है मिसिंग वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती है डेटा सेट के अंदर। जब आप मिसिंग वैल्यू को डील नहीं करते, आप ऐसे ही प्रोसेस कर देते हैं, तो वो डेटा जो रिजल्ट्स देता है वो फेक रिजल्ट्स होते हैं, वो बायस रिजल्ट्स होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। तो ये आप पहले ही डेटा, जब जैसे ही आप डेटा सेट लोड करते हैं मॉडल के अंदर, तो पहले ही आप ये देखते हैं कि हमारे पास मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। तो जैसे ही आप कैलकुलेट पता चल जाता है कि हाँ देयर आर मोर देन मिसिंग वैल्यू इन द डेटा सेट, उसको डील करने के लिए हमारे पास दो तरीकेकार होते हैं, ठीक है। या तो आप वो रोज ही डिलीट कर दें जिनके अंदर मिसिंग कॉलम्स अवेलेबल है, ठीक है, पहला तरीका। इससे ये आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि आपका जो डेटा की साइज है और वो रिड्यूस हो जाती है, और मे बी जो आप रोज डिलीट कर दें, क्या पता वो एक पर्टिकुलर क्लास से रिप्रेजेंट कर रही हो, वो एक पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाएगी। तो जो फर्स्ट अप्रोच है वो प्रेफर नहीं की जाती, राइट। द सेकंड अप्रोच जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू को डील करने के लिए यूटिलाइज की जाती है, दैट इज कैलकुलेटिंग द मीन। आप क्या करते हैं, आप अपने डेटा सेट की मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और वो जो मीन की वैल्यू निकलती है वो आप मिसिंग वैल्यू की जगह रिप्लेस कर देते हैं।
अच्छा, ये आपके जहन में आ रहा होगा, अच्छा मीन को क्या, अच्छा मीन जो है आपकी सेंटर्ड वैल्यू होती है डेटा सेट के अंदर, तो वो क्या कर रही होती है, नियर बाय सबको रिप्रेजेंट कर रही होती है, सारे डेटा पॉइंट्स को। तो ये रिसर्च के अंदर आया, डेटा साइंस के अंदर, कि जब मीन के साथ आप डेटा पॉइंट रिप्लेस करते हैं मिसिंग वैल्यू को, तो डेटा सेट की रिजल्ट्स के ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं आता और आपका डेटा सेट फिल हो जाता है। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यू को हम इस तरह से डील करते हैं। अच्छा, मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो नंबर्स के ऊपर चलते हैं, वो दे ओनली नो अबाउट द डिजिट्स, नंबर्स। उनको स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, उनको नहीं पता होता। वो कभी भी टेक्सचुअल डेटा को डायरेक्टली डील नहीं करते। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है, दैट इज अ वर्क स्पेस, वर्क वर्क क्लास, ठीक है, और उसके ये वैल्यूज हैं, स्टेट, गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। अब जाहिर सी बात है, मॉडल को अगर हम ये डेटा देंगे, ये कॉलम देंगे, तो ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो मॉडल के लिए अनअंडरस्टैंडेबल है, वो इसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं कर पाएगा ये क्या कह रहा है। तो उसको इस तरह के टेक्सचुअल डेटा को या स्ट्रिंग्स डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वन हॉट इनकोडिंग स्कीम यूटिलाइज करते हैं। ये एक्चुअली वन इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं, एक इंटीजर इनकोडिंग होती है, वन हॉट इनकोडिंग है, और भी बहुत सारे। इंटीजर इनकोडिंग यहाँ पे आपको सीक्वेंस रिप्रेजेंट करनी पड़े, ठीक है, और वन हॉट इनकोडिंग हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइंड हो, जैसे ये कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज को हमने जो है नंबर्स में रिप्रेजेंट करना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, वन हॉट इनकोडिंग क्या करता है, यूनिक कैटेगरीज जो है वो निकालता है। यहाँ पे कितनी है, 3 यूनिक कैटेगरीज है, ठीक है। अच्छा, अब वहां पे 1 रखेगा जहां पे कैटेगरी रिप्रेजेंट हो रही है, बाकी सब में 0 रख देगा। पहली जो रिकॉर्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास 1 प्लेस करेगा, बाकियों को 0 करेगा, ठीक है। तो दिस मीन्स कि जहां पे 1 होगा वो सिग्नल ऑन होगा, ठीक है, और वो कैटेगरी रिप्रेजेंट हो रही है। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे 0 और सेल्फ एम्प्लॉय के नीचे 1 रख देगा। और सिमिलरली प्राइवेट के नीचे, जब प्राइवेट की फील्ड आएगी तो उसके नीचे ना। तो इस तरह से जो है ये डेटा आपका स्ट्रिंग से नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू इनकोडिंग स्कीम, राइट। अच्छा, ये आपके पास अवेलेबल होगी, आ गया नंबर। अच्छा, बाज हमारे पास जो डेटा होता है वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है। अब वो जाहिर सी बात है 0 और 1 भी हो सकता है, 0 और 1 के दरमियान भी हो सकता है, और मोर देन 1, 200, 500, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू जो है ना वो हो सकती है। डिपेंड्स कि वो अगर क्या रिप्रेजेंट करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी की बात करें तो सैलरी लाखों में भी होती है, करोड़ों में भी होती है, थाउजेंड्स में भी होती है, एक नंबर डिस्प्ले करता है। तो हम क्या करते हैं कि डेटा को जो है उसकी डेटा की स्केलिंग करते हैं, फीचर की स्केलिंग करते हैं, कि हम जो भी डेटा हो हम उसको 0 और 1 के दरमियान ले आए। उससे फायदा ये होता है कि आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है ना वो जो है वो कम हो जाती है, लेकिन रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिजल्ट आपका वैसा ही रहता है। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो थाउजेंड्स और 3 डिजिट और 4 डिजिट के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है डेटा सेट की, तो जब मॉडल के अंदर एक्चुअली क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन होती है वेट्स एंड इनपुट्स की एक डिफरेंट तरीके से। तो जब वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज में चली जाती है। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा स्पेस जो है ऑक्यूपाई करेगी मेमोरी में, उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगाएगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप डेटा को जो है वो रीस्केल कर दें। फॉर एग्जांपल अगर देखें कि हमारे पास जो इमेज होती है, अगर आरजीबी इमेज जो कि 0 और 255 के दरमियान रिप्रेजेंट कर रही होती है अपने फीचर्स को, अगर हम उसको 0 और 255 के बजाय 0 और 1 के दरमियान रीस्केल कर दें, ठीक है। अच्छा, रीस्केलिंग के अंदर जो है ना वो इमेजेस के ऊपर या कोई भी डेटा पॉइंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, हम उसी हिसाब से स्केल कर देते हैं। तो फायदा ये होता है कि आपकी जो डेटा की साइज है वो रिड्यूस हो जाती है, और कंप्यूटेशन पावर जो है आपको कम यूटिलाइज करना पड़ता है। तो हमारे पास 2 स्केलिंग की जो है वो टेक्निक्स होती हैं। एक नॉर्मलाइजेशन होती है। नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि आप जो भी डेटा पॉइंट्स होते हैं उसको 0 और 1 के दरमियान स्केल डाउन कर देते हैं, राइट, और वो पूरा डेटा स्केल डाउन हो जाता है। और एक हमारे पास है स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक। स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक के अंदर ये होता है कि आप डेटा की जो है वो मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मीन कैलकुलेट करके जितने भी डेटा पॉइंट्स है उस मीन से सबट्रैक्ट करके आप जो है वो असाइन कर देते हैं। उससे भी क्या होता है, फिर आपकी पूरी डेटा सेट जो है वो साइज रिड्यूस हो जाती है, वैल्यूज की साइज।
राइट। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे डेटा के हवाले से जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नाउ कम टू द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज द साइंस। अब हम यहाँ पे जो है मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स देखेंगे और उनको समझेंगे, उसके टाइप्स को। अच्छा, एक सवाल हमारे पास, एक जो नॉन टेक्निकल या जो शुरू में मशीन लर्निंग पढ़ रहे होते हैं, उनके जहन में एक सवाल आता है कि यार मतलब मशीन लर्न कैसे करती है। मतलब बात समझ में आती है, एक बंदा चीजें समझ रहा है, सीख रहा है, वो कह सकते हैं, लेकिन हाउ मशीन लर्न, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, केजी के अंदर, छोटी क्लास में जब उसको टीचर पढ़ाता है कि ये ए है, ये बी है, उस वक्त उसको समझाया जाता है, ठीक है, कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेकिन वो मिस्टेक्स कर रहा होता है, ठीक है। कभी ए को बी कर जाता है, कभी बी को ए कर जाता है, वो मिस्टेक्स कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको लिखूं कि मशीन कैसे लर्न करती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है। आप भी जो है वो कह रहे हैं कि 2, अच्छा 2 मल्टीप्लाई 2 4 ही होता है। अच्छा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा मुझे बता दें कि यहाँ पे क्या आएगा आंसर। कोई एक चैट में लिखे बेटा, अगर चैट अलाउड है यहाँ पे, होस्ट कैन इन्फॉर्म मी कि चैट अलाउ है। एट, ठीक है। अच्छा 2/4 8 आएगा। अच्छा 8 कैसे आया, मतलब आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? अब क्योंकि आप ये बाय एडिंग टू आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि केजी का बच्चा जो बिल्कुल अभी स्कूल में गया है, क्या वो बता सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8? नहीं बता सकता, ठीक है। वो नहीं बता सकता कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होता है। लेकिन अगर उसको पढ़ाया जाए, समझाया जाए सिमिलरली, तो वो टाइम टू टाइम सीख जाता है कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। मशीन्स क्या करती हैं, उनका सीखने का जो अंदाज होता है, वो उनको ये जो है मल्टीप्लिकेशन साइन वो नहीं मिली हुई होती, ये इनके यहाँ ये वाला साइन नहीं होता है। मशीन को इस तरह से डेटा दिया जाता है, ठीक है। मशीन देखती है कि अच्छा 2 2 आपस में ये 4 हो रहा है, 2 एंड 3 6 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होंगे। वो क्या करती है फिर इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन काउंट करती है। तो जो आपने, अगर मैं अभी यहाँ पे बताता ना, बहुत सारी एक आईक्यू टेक्निक्स होती हैं, अच्छा 2 और 2 इतना, 2 एंड 3 इतना, बता दें ये क्या, फिर आप डिफरेंट बाद एडिशन लगा रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा रहे होते हैं, डिवीजन लगा रहे होते हैं, देन कोई ना कोई एक रूल आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके तहत आप आंसर निकाल देते हैं। फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे तरह की पिक्चर्स जो है ना आईक्यू की हमारे पास जो है वो पोस्ट हो रही होती हैं। तो मशीन उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट हमें उस वक्त आंसर नहीं आ रहा होता, हम क्या करते हैं, देख रहे होते हैं पैटर्न्स, अच्छा ये अप्लाई करके देखें, ये अप्लाई करके देखें, ये अप्लाई करें, किसी ना किसी रिलेशन के थ्रू हम पहुंच जाते हैं रिस्पॉन्स के ऊपर, सही। तो मशीन भी क्या करती है, इस सेट्स को देखती है, अच्छा ये इस 2 है तो इस तरह से 2 3 है तो इस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, 1 2 है तो इस तरह से आ रहा है, जो भी है। तो आखिर में जब रिजल्ट कैलकुलेट होती है तो मशीन इसके दरमियान रिलेशन कैलकुलेट करती है। अच्छा 2 एंड 2 के दरमियान जो है ना ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है, 2 एंड 3 के दरमियान ये मल्टीप्लाई का रिलेशन, जिसके तहत वो रिजल्ट कैलकुलेट, तो उसके बाद जो है वो मशीन जो है ना वो जनरलाइज कर लेती है खुद को, अच्छा अब जो भी वैल्यूज आएगी ना मुझे, मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा और रिजल्ट दे दूंगा। अब जो भी वैल्यू, अच्छा लाजमी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई हो, अब ये उसकी लर्निंग के ऊपर है ना, लाजमी नहीं है कि मशीन 100% लर्न करे, बाज़ दफा जो उसने समझा हो रिलेशन वैसा ना हो, ठीक है, वो ऐसा ना हो। अभी जो है वो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये 8 है, मशीन ने समझा कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, या क्या पता यहाँ पे कोई और रिलेशन और आ रहा हो, ठीक है, तो वो गलत भी हो सकती है। लेकिन
जो डेटा के ऊपर अगर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है उसके पास लर्निंग के लिए, तो मशीन अच्छे से रिलेशन आइडेंटिफाई कर लेती है। तो मशीन लर्निंग इज नथिंग, इट्स अ डेटा साइंस टेक्निक यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं, वहां से वो पैटर्न एक्सट्रैक्ट करती है। जब उसको पैटर्न मिल जाता है तो फिर वो कंप्यूटर को एक जो है एक फंक्शन बना के दे देती है कि नाउ पुट द इनपुट एंड गेट द आउटपुट, डेटा दो और आउटपुट लो। सो एक्सट्रैक्ट द पैटर्न फ्रॉम द डेटा अलाउइंग कंप्यूटर आइडेंटिफाई रिलेटेड डेटा एंड फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम्स, बिहेवियर्स एंड ट्रेंड्स। ठीक है, तो सिंपल जो है वो मशीन लर्निंग इस तरह से लर्न कर रहे थे। अच्छा, मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग और जो ट्रेडिशनल हम प्रोग्रामिंग करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, उसके अंदर फर्क ये है कि जो हम इनिशियल प्रोग्रामिंग करते आए, जो ऊप है या फंक्शनल है या प्रोसीजरल है, अच्छा हमारे पास रूल्स गिवन होते हैं, डेटा हमारे पास होता है, हम उसको प्रोग्राम करते हैं और हम आंसर्स प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, आंसर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये हमारी क्लासिकल अप्रोच होती है मशीन लर्निंग के अंदर। लेकिन क्लासिकल अप्रोच है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, डेटा गिवन होता है और आंसर्स भी गिवन होते हैं। जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल किया ना 224 एंड 236, तो डेटा भी गिवन है और आंसर्स भी गिवन है। हमें क्या प्रेडिक्ट करना पड़ता है, हमें रूल्स निकालने होते हैं। जो हम इनसाइट्स की बात कर रहे हैं ना, पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग के अंदर आप डेटा के अंदर रूल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस रूल्स के तहत इस डेटा पॉइंट्स को ये क्लास लेबल असाइन की जा रही है, किस रूल के तहत जो है इन डेटा पॉइंट्स के अगेंस्ट ये वैल्यू फोकस की जा रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शन ऑफ द रूल्स। तो ये डिफरेंस है हमारी एक क्लासिकल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग के अंदर, राइट। मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स हैं, सुपरवाइज एल्गोरिथम्स, अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स, रीइंफोर्समेंट, एंड उसके अंदर सब टाइप्स बहुत सारे एल्गोरिथम हैं। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो है वो मेजर के ऊपर कवर कर रहे हैं। बाकी तो ये वेबिनार का टाइम इट्स नॉट इनफ टू कवर ऑल दी एल्गोरिथम। हम एक एक एल्गोरिथम हर कैटेगरी में देखेंगे एंड लेट्स डिस्कस वन बाय वन। अच्छा, सुपरवाइज का मतलब ये है कि एल्गोरिथम के अंदर जो है आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल है जो आपको सुपरवाइज कर रही है। ठीक है, मींस के यू आर लर्निंग इन द क्लास एंड देयर इज अ टीचर टू टीच यू। आप इंडिपेंडेंटली सेल्फ स्टडी या सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे, आपको जो भी बताया जा रहा है वो सुपरवाइज किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे सुपरवाइज का मतलब ये है कि जो डेटा सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो डेटा दिया जा रहा है, उसके अगेंस्ट आपके पास लेबल्स अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? लेबल्स अवेलेबल है। अगर मैं कहूं कि ये डेटा पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 और इसका लेबल जो है वो ए है, ये ए क्लास से बिलोंग करता है। ये बी क्लास से बिलोंग करता है और ये सी क्लास से बिलोंग करता है, और फॉर एग्जांपल ये सेम आ गया और ये ए क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो हम क्लास असाइन कर रहे हैं ना, कैटेगरीज असाइन कर रहे हैं, इसको कहते हैं लेबल्ड डेटा। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिथम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो लिस्टेड है, उनको जो डेटा सेट प्रोवाइड किया जाता है वो लेबल्ड डेटा सेट होता है। ठीक है, मीन्स के कोई भी आपकी फीचर्स होंगे उसके अगेंस्ट कोई ना कोई क्लास उसकी डिफाइन की जा चुकी होगी, और आपको क्या होगा, एक नया डेटा सेट पॉइंट दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको जो है वो बताएंगे कि अच्छा ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, बताएं इसकी क्लास क्या होगी, किस क्लास से ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो वो आपकी प्रेडिक्शन कहलाएगी उस केस में। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो है हमारे पास जो कैटेगरीज कवर होती हैं, वो एक रिग्रेशन हमारे पास स्कीम है, और सेकंड इज द क्लासिफिकेशन स्कीम। ठीक है, अच्छा रिग्रेशन स्कीम के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन कैलकुलेट करना होता है। अब वो दो जो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंटरमीडिएट के अंदर आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी, टू रिप्रेजेंट द लाइन। ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस b, आपको याद होगी मे बी। एक्चुअली वही सेम इक्वेशन जो है यहाँ पे रिग्रेशन के लिए भी अप्लाई यूज की जाती है। ठीक है, तो रिग्रेशन के अंदर जो है आप कंटिन्यूअस वेरिएबल्स की प्रिडिक्शंस कर देते हैं। हाउस की कॉस्ट प्रिडिक्ट करनी है, या स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन करनी है, वेदर फोरकास्टिंग की जो है वो प्रिडिक्शन करनी है। तो जो भी कंटिन्यूअस प्रिडिक्शन जहाँ पे इन्वॉल्व हो,
कंटिन्यूस वैल्यू वेरिएबल्स की प्रेडिक्शन हो, वहां पे हम रिग्रेशन एल्गोरिथम को यूटिलाइज करते हैं। फाइनेंस के अंदर जो है वो रिग्रेशन का एक पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है एमबीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स को, तो क्योंकि उसका मेजर फाइनेंस के अंदर काम होता है। क्लासिफिकेशन के अंदर जो है हम जो है आउटपुट वेरिएबल या कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताया कि आपके डाटा पॉइंट्स अवेलेबल है और आप क्लास प्रिडिक्ट करें ना, ए है, बी है, सी है, जो भी जिस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये दो कैटेगरीज हैं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, और इन हर कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करें लीनियर रिग्रेशन की, जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, दैट्स लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस b, लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर जिसको a1 ठीक है एंड a0 के साथ दिस इज बायस, ठीक है, और दिस इज इनपुट वेरिएबल और दिस इज अ वेट, ठीक है, वेट की वैल्यू है और ये आउटपुट है आपके पास, ठीक है। y इज द डिपेंडेंट या टारगेट वेरिएबल जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, और x इज इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर वेरिएबल जिसके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं कहूँ कि हाउस की वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट करनी है हाउस, तो अब हाउस अगर हम एक वेरिएबल के ऊपर डिसाइड करना चाह रहे हैं कि हाउस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम उस हाउस की साइज कैटर कर सकते हैं, ठीक है। क्या हाउस की साइज अगर 100 गज होगी तो प्राइस ये हो सकती है, वाई ये हो सकता है। अगर हाउस की जो है साइज 200 गज होगी तो वाई है ये हो सकता है। तो इस तरह की प्रेडिक्शन के लिए जो है हम लीनियर रिग्रेशन यूज कर रहे होते हैं। तो ये होता ये कि आप ये जो डेटा पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं और ये जो y की इक्वेशन है ना, ये जो y इक्वल्स टू x a1x प्लस a0, एक्चुअली ये लाइन फिट कर रही होती है इन डेटा पॉइंट्स के दरमियान। तो वो जो बेस्ट फिट मॉडल होता है ना, वो ये होता है कि जो हर पॉइंट के दरमियान उसका इक्वल डिस्टेंस हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लाइन जो है वो यहाँ नीचे आ जाए, बहुत ज्यादा पॉइंट जहाँ ऊपर चले जाएं, तो एक ऐसी जगह पे फिट किया जाए जहाँ पे सारी पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिसाइड होता है डिफरेंट आइट्रेशंस के थ्रू। आप a0 तो फिक्स होता है वैल्यू बायस की, a1 की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही होती है। एक्चुअली y भी आपके पास गिवन प्रेडिक्ट करना होता है, x गिवन होता है। जो लर्निंग कर्व है ना, जो मॉडल लर्न कर रहा होता है, जो बेस्ट वैल्यू हमने निकालनी होती है वो एक्चुअली a1 की वैल्यू निकालनी होती है। तो a1 की वैल्यू जो है वो आपको बता रही होती है कि आपका मॉडल कितना अच्छा है, उसको आपने प्रेडिक्ट करना है, जिसको हम लीनियर रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो मॉडल है उसको कितना अच्छा है, तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक हमारे पास कॉस्ट फंक्शन अवेलेबल होता है जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हमारे पास, दैट इज अ मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। तो जो एक्चुअल वैल्यू है प्राइस है और जो प्रेडिक्टेड है उनके दरमियान डिफरेंस निकाला जाता है। तो डिफरेंस अगर मिनिमम होगा, सही है, मीन स्क्वायर एरर, तो आपका मॉडल अच्छा कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये डिफरेंस निकाला जा रहा है, ये एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड जो है ना उसका डिफरेंस निकाला जाता है। तो जो भी जब कम से कम एरर होगा, ये 0 और 1 के दरमियान होता है। अगर एमएससी की वैल्यू 1 आ गई है मीन्स के मॉडल किसी काम का नहीं है, लेकिन एमएससी की वैल्यू बिल्कुल 0 के दरमियान कम है, 0 के करीब है, तो मॉडल आपका अच्छा कहला जाता है। तो ये रिग्रेशन का एग्जाम्पल हमने देखा। एंड द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आपके पास लेबल्ड डेटा अवेलेबल होता है जिसको हम ट्रेनिंग सेट कहते हैं, ट्रेनिंग सेट, और एक टेस्ट सेट अवेलेबल होता है फॉर द टेस्टिंग पर्पज, जिसमें सिर्फ लेबल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग के लिए डेटा देते हैं और मॉडल उसके ऊपर ट्रेनिंग करके जब आप उसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो आप उसको एक टेस्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो सैंपल्स हैं उनके अगेंस्ट मॉडल आपको जो है क्लासिफाई कर रहा होता है कि ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है। आप इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ क्योंकि लाजमी है कि आप क्लासिफिकेशन 2 इंडिकेटर्स के ऊपर भी कर रहे हैं या 3 इंडिकेटर्स के ऊपर, 4 इंडिकेटर्स के ऊपर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ 2 क्लासेस हो। तो उस के लिए जो है ये क्लासिफिकेशन कि आप जब डेटा पॉइंट्स को कैटेगरीज में जो है वो करना चाह रहे हो, कैटेगरीज के अंदर आप करना, और कैटेगरीज डिफाइंड हो कि ये ए कैटेगरी, ये बी कैटेगरी, ये सी के, इसके बकेट्स अवेलेबल हैं और बकेट्स के ऊपर नाम लिखे हुए हैं कि ये बकेट ए, बकेट बी, बकेट सी है। अब जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उनको रूल्स के तहत जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किए हैं, ठीक है ना, जो मॉडल ट्रेन करके उसने रूल्स प्रिडिक्ट किए हैं, उन रूल्स के तहत आपने हर डेटा पॉइंट्स को डिफरेंट बकेट्स के अंदर डालने हैं।
तो दैट इज एक्चुअली क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास जो फेमस एल्गोरिथम है दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिथम। SVM is very famous. It's also utilized in the image classification and different other data sets, और ये बहुत ही अच्छा डेटा सेट है, ठीक है। जब मशीन लर्निंग अप्रोचेज यूटिलाइज की जाती थी तो SVM बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता था, लेकिन जैसे ही पावर जो है वो बढ़ गया, GPUs आ गए, सारी चीज़ें, तो डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स आ गए और वो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी SVM स्टिल एग्जिस्ट। SVM क्या करता है, आपके जो भी डेटा पॉइंट्स होते हैं अवेलेबल, ठीक है, उनके दरमियान जैसे लीनियर इक्वेशन थी ना, लीनियर की एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी पॉइंट्स को, ठीक है, और वो कंटिन्यूस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन SVM के अंदर जो है आप क्या कर रहे हैं, आप दो जो डेटा पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन है, दो ग्रुप्स के दरमियान आप एक हाइपर प्लेन क्रिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, हाइपर प्लेन जो है वो क्रिएट करते हैं। आप इनिशियली जो है ना वो रैंडम वैल्यू असाइन कर देते हैं हाइपर प्लेन को। उसके बाद आप यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू जो है जो वेक्टर्स होते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स मींस के जो सबसे करीब डेटा पॉइंट होता है इस हाइपर प्लेन के करीब जो पॉइंट होता है, उनको सपोर्ट वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान ये क्या करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम मार्जिन क्रिएट कर रहा होता है, ताकि ये जो लाइन है वो और इनके दरमियान डिस्टेंस हो और जो नए पॉइंट्स हो वो इन दोनों को सेपरेट कर दे, मीन्स के बीच में एक दीवार क्रिएट कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये एक दीवार है, इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो इस कैटेगरी के हैं और इस तरफ के जो एलिमेंट्स हैं वो इस कैटेगरी के हैं। तो SVM मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है, इसके टू क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। जब ये लीनियर SVM इसको कहा जाता है। अच्छा, जहाँ पे मोर देन 2 क्लासेस की बात आती है तो फिर वहाँ पे नॉन लीनियर SVM एल्गोरिथम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि वहाँ पे यूटिलाइज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लीनियर SVM की बात कर रहे हैं। तो ये हाइपर प्लेन जो है, जो बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये मैक्सिमम मार्जिन होता है, ठीक है। एक्चुअली ये मैक्सिमम मार्जिन ही कैलकुलेट करना होता है हमारे पास SVM के अंदर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस एल्गोरिथम, ये भी हमें देखना होता है कि हम इतना मार्जिन कितना मार्जिन हम डिसाइड करें। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं तो क्या पता कुछ पॉइंट्स हो जो कि बीच में हाइपर प्लेन के अंदर भी आ जाए, तो हमें वो नहीं करने होते। इस तरह से हमें डिजाइन करना पड़ता है ताकि नए आने वाले जो पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, या इधर चले जाएं या इधर चले जाएं, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट वेक्टर मशीन है का एक इलस्ट्रेशन है जो कि मैंने आपके सामने रखी। होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, जो एग्जांपल है सपोर्ट वेक्टर का, कि आपके पास डेटा जो है लेबल डेटा जा रहा होता है, मॉडल ट्रेनिंग होती है और प्रोडक्शन के अंदर जो है ना न्यू डेटा प्रोवाइड किया जाता है, उसका लेबल अवेलेबल नहीं होता, लेकिन एक वो फीचर्स होते हैं इमेज के, तो मॉडल अपने रूल्स के तहत जो है उसको टैग कर रहा होता है, अच्छा इट्स अ कैट, इट्स अ डॉग एंड एनीथिंग एल्स। तो फेस डिटेक्शन या इमेज क्लासिफिकेशन या टेक्स्ट कैटेगराइजेशन जो है के लिए SVM एल्गोरिथम यूज किया जाता है। अच्छा, जो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के अंदर हमने कहा ना कि इवैल्यूएशन के लिए हम मीन स्क्वायर एरर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि मीन स्क्वायर एरर जो है वो कंटिन्यूस डेटा के लिए यूटिलाइज होता है। क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग जो है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज करते हैं, वो करते हैं हम प्रिसिशन, रिकॉल एंड एक्यूरेसी, हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम यूटिलाइज करते हैं। ये एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहलाता है, इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 4 इंडिकेटर्स होते हैं। ये जो कॉलम है, कॉलम में हम प्रिडिक्टेड रखते हैं और रो के अंदर जो है हम एक्चुअल रखते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव मीन्स के क्लास भी जो पॉइंट था वो क्लास ए से रिप्रेजेंट कर रहा था और प्रिडिक्ट भी क्लास ए हुई है, दैट इज अ ट्रू पॉजिटिव, राइट। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो डेटा पॉइंट्स बिलोंग कर रहे थे वो कैटेगरी बी से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन मॉडल ने उसको ए असाइन कर दिया। क्या कर दिया, ए असाइन कर दिया। अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे करूँ ना, फीचर 1 2, मैं कहता हूँ कि ये मेल है, ठीक है, 2 3 और ये फीमेल है, 2 2 फीमेल 1 3 मेल, ठीक है। ये डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं और सिस्टम जो है
वो क्या कर रहा है, जो है क्लासीफाई करने जा रहा है कि जो आने वाले डेटा पॉइंट्स हैं मेल को आइडेंटिफाई करें, ठीक है ना। आपने क्लासीफाई क्या करना है, मेल क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, 1 and 2 पॉइंट्स आया, मेल के पॉइंट्स हैं, ठीक है, और सिस्टम ने प्रिडिक्ट भी मेल किया, तो दैट इज अ ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। और 2 and 3 आया, ये फीमेल था, और सिस्टम ने भी अगर फीमेल प्रिडिक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड क्लास है, ट्रू नेगेटिव में जाए। लेकिन अगर ये 2 and 3 ये फीमेल था, लेकिन सिस्टम ने अगर इसको मेल प्रिडिक्ट किया, अगर सिस्टम ने, मॉडल ने इसको मेल प्रिडिक्ट कर दिया, तो ये कहां चला जाएगा, ये फॉल्स पॉजिटिव में चला जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि ये मेल नहीं था लेकिन सिस्टम ने इसको मेल प्रिडिक्ट किया है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव। सिमिलरली ये जो पॉइंट्स थे फीमेल के, ये वाले मेल के, सिस्टम ने इसको क्या किया, फीमेल टेक कर दिया, सिस्टम ने क्या किया, फीमेल टेक कर दिया, तो ये फॉल्स नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस तरह से जो ना वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपका ये काम कर रहा होता है। अच्छा, प्रिसीशन ये है कि कितना एक्यूरेट आपका मॉडल है, ठीक है, कितना एक्यूरेट आपका मॉडल है। वो क्या कहता है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं उस हिसाब से, सपोज हमारे पास मेल के 2 एग्जांपल्स हैं और फीमेल के 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और हम जो है प्रिसिशन निकालना जा रहे हैं मेल की। अगर ट्रू पॉजिटिव के अंदर 2 आ गए तो क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव टोटल एग्जांपल्स 4 हैं और ट्रू पॉजिटिव जो है वो 2 चले गए यहाँ पे ऊपर, तो 2 और नीचे जो है 0 2 आएगा, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव में कोई भी नहीं आया। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 1, दैट इज द 100%, मीन्स के मॉडल आपका 100% प्रेडिक्ट कर रहा है, दैट इज प्रिसिशन, ठीक है। लेकिन अगर उसने एक मेल को फीमेल भी प्रेडिक्ट कर दिया ना, तो फॉल्स पॉजिटिव में वैल्यू चली जाएगी, तो फिर क्या होगा, आपकी प्रिसिशन की वैल्यू कम हो जाएगी, मीन्स कि आपका मॉडल सही से प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। अच्छा, रिकॉल मीन्स कि आप मॉडल कितना याद रखता है, मॉडल जो उसने लर्न किया है वो कितना याद रखता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आप जितने भी ट्रू पॉजिटिव होते हैं ना, ठीक है, मीन्स के जो मेल की जितनी भी क्लासेस थी, एग्जाम्पल थे, वो मेल ही प्रिडिक्ट हुए हैं, और फीमेल के जितने भी एग्जाम्पल थे वो फीमेल ही प्रिडिक्ट हुए हैं, ठीक है। और उसके अगेंस्ट जो है हम एक मेल की देखना चाह रहे हैं रिकॉल। अच्छा, मेल सारे जो है वो पॉजिटिव ही प्रिडिक्ट हुए हैं, तो उसकी 100% एक्यूरेसी आ जाएगी। फीमेल को उठाएंगे हम तो उसकी भी 100% आ जाएगी। तो इन दोनों की जब सम रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स करते हैं तो वो आपकी एक्यूरेसी आ जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो ग्रीन है वो पॉजिटिव है और रेड जो है वो नेगेटिव है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर देखें 10 पॉइंट्स थे पॉजिटिव के, 1 पॉइंट था नेगेटिव का। अच्छा, यहाँ पे देखें जो पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव मीन्स के पॉइंट भी पॉजिटिव थे और प्रेडिक्ट भी पॉजिटिव हुए 9, लेकिन एक ऐसी वैल्यू थी जो पॉजिटिव थी लेकिन नेगेटिव प्रेडिक्ट हो गई है, तो यहाँ पे देखें फॉल्स नेगेटिव चला गया, मीन्स के प्रेडिक्टेड पॉजिटिव प्रेडिक्टेड नेगेटिव। ये जो रेड था इसको नेगेटिव की बकेट में जाना था लेकिन ये पॉजिटिव में चला आया। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव जो मॉडल है वो पॉजिटिव तो सही प्रेडिक्ट कर रहा है, रिकॉल तो उसका अच्छा है, उसने पॉजिटिव को याद किया हुआ है, सारे पॉजिटिव उसने पॉजिटिव किए हैं, लेकिन एक नेगेटिव को जो ना ये पॉजिटिव बोल के गया है, मीन कि इसकी जो लर्निंग है ना वो थोड़े उसके अंदर मसला है, ठीक है। तो देखें वो प्रिसिशन उसका 90% आया है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें पॉजिटिव 1 पॉइंट है और नेगेटिव के जो है वो 9 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, एक ही, लेकिन जो दो ऐसे पॉइंट्स थे जो नेगेटिव थे उसको इसने पॉजिटिव कह दिया, तो सारे नेगेटिव जो है पॉजिटिव प्रेडिक्ट करना था, रिकॉल स्टिल 100%, क्योंकि प्रेडिक्ट हमने पॉजिटिव करना था और पॉजिटिव को उसने पॉजिटिव ही कहा है, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव को 2 नेगेटिव को उसने पॉजिटिव कह दिया है, तो इसकी वजह से प्रिसिशन उसकी कम हो गई रिकॉल। तो ये इवेल्यूएशन मैट्रिक्स है जो कि क्लासिफिकेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ एल्गोरिथम्स भी अवेलेबल होते हैं फॉर दी लर्निंग पर्पस। आप एक वैल्यू लर्न कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल आपने एक वैल्यू लर्न की है, एक्यूरेसी लर्न की है
कि भाई आपकी मॉडल की एक्यूरेसी जो है ना वो 79% आ गई है इस पॉइंट के ऊपर, और आपकी जो आइडियल एक्यूरेसी वो यहाँ पे, गोल जो है आपका यहाँ पे है, ठीक है, वैली के यहाँ पे। तो आपने क्या करना होता है, एक ट्रेनिंग के दौरान एक लर्निंग रेट सेट करना होता है। लर्निंग रेट क्या करता है, सारे डेटा सेट की वैल्यूज को प्रोसेस करके वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा होता है और एरर को जो है वो मिनिमाइज कर रहा होता है। तो क्या होता है, स्टेप साइज एंड लर्निंग रेट। लर्निंग रेट का मतलब होता है कि ये जो बंदा एक स्टेप ले रहा है उसकी साइज कितनी है, ठीक है। अगर ये बहुत सारे जंप लेगा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से जंप लेके ये आगे इस तरफ भी आ जाएगा। तो बाज दफ़ा जो है वो स्टेप साइज बड़ी होने की वजह से आप ग्लोबल मिनिमा पे ऊपर या जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे पहुँच नहीं पाते। तो इट्स एन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटल पर्पज कि आप स्टेप साइज एंड लर्निंग रेट इस हिसाब से डिसाइड करें कि आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ पहुँच जाएँ। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो है डिटेल्ड टॉपिक, लेकिन फॉर द लर्निंग पर्पज जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर आपका ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ किया जाता है। तो इसके बहुत सारे बैच ग्रेडियंट है, SGD है, या बहुत सारे और भी एडवांस फंक्शंस हैं जो यूटिलाइज किए जाते हैं। सो दिस वेबिनार इज नॉट इनफ टू एटलीस्ट कवर द ग्रेडियंट डिसेंट, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाई वी यूज ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता है, दैट इज डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। अच्छा, डिसीजन ट्री के अंदर होता ये है कि जितने भी कंडीशंस होती हैं ना, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जॉब का डेटा है, ठीक है, और जो है प्लेसमेंट्स का डेटा है। अच्छा, ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, ये स्किल्स हैं, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, वेरिएबल्स के थ्रू जो करके ना एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन हो रही थी। आप जो है वो डिफरेंट रूल्स के थ्रू, जैसे इफ़ एंड एल्स हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं ना, तो डिसीजन ट्री के अंदर भी जो है ना सिमिलरली इफ़ एंड एल्स। तो ये जो नोड्स होती हैं हमारे पास, यहाँ पे कंडीशंस रखी जाती हैं, यहाँ पे डेटा फिल्टर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट्स आ रही हैं, यहाँ पे लिखा एज का फिल्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है वो क्वालिफिकेशन का लगा हुआ है। सपोज एज अगर ग्रेटर देन 50 है तो पॉइंट इस तरफ आएंगे, अगर लेस देन 50 होगा तो यहाँ पे आएगा। सिमिलरली एजुकेशन अगर जो है वो बैचलर है तो इस तरफ आएगा, और मास्टर है तो इस तरफ आएगा। मास्टर के बाद जो सिर्फ मास्टर यहाँ आएगा, और PhD तो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह के रूल्स बेस्ड जो है ना वो क्लासिफिकेशन होती है डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें, सैलरीज बिटवीन 50,000 to 80,000, अगर येस है तो इधर जाएगा, नो है तो डिक्लाइंड ऑफर, जो भी एक आपके पास जो है फिनोमेना होती है बिजनेस की। ऑफिस नियर टू होम, यस, आगे प्रोसीड करना है, नो तो ऑफर डिक्लाइन। प्रोवाइड्स कैब फैसिलिटी, यस, एक्सेप्ट ऑफर, नो, डिक्लाइन दी ऑफर। ये एक जो है कैंडिडेट जॉब ऑफर को डिसीजन ट्री के थ्रू जो है वो क्लासीफाई कर रहा है। तो ये सिंपल आपको ऐसा लग रहा होगा इफ एंड एल्स वाला ये तरीकेकार है, लेकिन एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन है इफ एंड एल्स की। लेकिन ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स डेटा हो, बहुत ज़्यादा थाउजेंड ऑफ द वेरिएबल्स हों, 100 वेरिएबल्स हों, तो डिसीजन ट्री हमारे लिए अच्छा जो है वो रिजल्ट क्लासीफाई करके दे रही होती है। तो अच्छा, डिसीजन ट्री एक सिंगल ट्री एल्गोरिथम होता है, और उसके बाद जिस तरह से एग्जांपल होता है ना कि रैंडम फॉरेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। रैंडम फॉरेस्ट का मतलब ये है कि वहाँ पे मल्टीपल ट्रीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। एक ट्री नहीं होती, मल्टीपल ट्रीज अवेलेबल होती हैं। तो हर ट्री जो है ना अपना एक डिसीजन जो है वो दे रही होती है ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, और उसके बाद जो डिसीजन ट्रीज के जो आउटपुट होते हैं ना उसके ऊपर वोटिंग की जाती है, एवरेज निकाला जाता है, और उस एवरेज को हम रिजल्ट के ऊपर, आउटपुट के ऊपर शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्रूट बकेट, और यहाँ पे जो ना फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन हो रही है। तो एक ट्री ने कहा कि ये एप्पल है, दूसरे ने कहा कि ये एप्पल है, और थर्ड ने कहा कि दिस इज बनाना। तो जो वोटिंग निकली, तो जो प्रेडेटेड फ्रूट है जो आया है नीचे, वो एप्पल से बिलोंग करता है। तो दिस इज हाउ रैंडम फॉरेस्ट वर्क्स। नाउ कमिंग टू द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आप इमेज से भी देख रहे होंगे कि जो टीचर अवेलेबल था प्रीवियस सुपरवाइज के अंदर वो नहीं है। मीन्स के यहाँ पे अगर हम डेटा सेट की लैंग्वेज में समझें कि यहाँ पे जो डेटा गिवन होगा वो लेबल्ड डेटा नहीं होगा, सिंपल पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है।
मीन्स कि यहाँ पे मशीन जो है एल्गोरिथम खुद डिसाइड करेगा। वहाँ पे हम कैटेगराइज कर रहे थे क्लासेस के अंदर पॉइंट्स को, जो है क्लासीफाई कर रहे थे। यहाँ पे आपके पास आपने पॉइंट्स को ग्रुप में डिवाइड करना है और उन ग्रुप को डेफिनेशन भी आपने खुद करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज नहीं होती कि ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। यहाँ पे आपको ग्रुपिंग करनी होती है बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो अनसुपरवाइज के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के एल्गोरिथम होते हैं, वन इज द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स एंड सेकंड इज द एसोसिएशन एल्गोरिथम्स। क्लस्टरिंग के अंदर जो है पॉइंट्स को हम ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और एसोसिएशन के अंदर जो है हम बिलोंगिंग्स निकाल रहे होते हैं, जो कि बास्केट एनालिसिस होती है या बास्केट एनालिसिस होती है मार्केट के अंदर, बहुत फेमस है कि अगर किसी ने मिल्क लिया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिल्क के साथ वो ब्रेड भी लेगा, मिल्क के साथ वो बटर भी लेगा। इस तरह के एल्गोरिथम जो एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंदर आ रहे होते हैं। तो के मीन क्लस्टरिंग के अंदर आपको डेटा जो है इस तरह से गिवन होता है, देखें सारे डेटा सेट अवेलेबल है। तो इस डेटा सेट को देख के, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा जो है वो क्लियरली रखे हुए हैं कि हाँ जो है वो नज़र आ रहे हैं कि ग्रुप्स बने हुए हैं। तो बाज़ दफ़ा जो है ये डेटा मिक्स होता है, अवेलेबल पता नहीं चलता, तो इसके अंदर प्रोसेसिंग की जाती है। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरह से ग्रुप करूँ, 2 ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे, 1 ग्रुप बनेगा, 4 बनेंगे, इस तरह से क्लासीफाई करूँ या किस तरह से पता नहीं चलता। जो के मीन क्लस्टरिंग है या डिफरेंट और क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, वो इसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं और इनको ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ये वर्क किस तरह से करता है, आप डिफरेंट जो है वो सेंट्रोइड्स प्लेस करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ के जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिर क्लस्टर्स होते हैं जो आप इनिशियली खुद प्लेस करते हैं। सपोज मैंने कहा कि यार जो डेटा सेट है मुझे इसके अंदर 5 क्लस्टर चाहिए या मुझे 3 क्लस्टर चाहिए, तो मैं रेंडमली कोई ना कोई क्लस्टर वो उसके अंदर पुट करता हूँ। अब वो क्लस्टर जो है यहाँ पे भी आ सकता है, जो है यहाँ पे भी पुट हो सकता है, कहीं पे भी जो है ना वो क्लस्टर मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लस्टर यहाँ पे पुट किया और एक क्लस्टर मैंने जो है ना वो यहाँ पे पुट किया, रेंडमली पुट होते हैं, ठीक है। आप डिसाइड नहीं करते, आप रेंडमली क्लस्टर आपने पुट किए 3, और उसके बाद क्या होता है, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं ना उन हर क्लस्टर से डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। तो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, जो पॉइंट जिस क्लस्टर के सबसे ज्यादा करीब होते हैं वो पॉइंट उस क्लस्टर को असाइन किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट फेज में जो है ना वो जो असाइन क्लस्टर है ना उसको उस तरह का कलर असाइन किया जाता है। तो इसी तरह से ना डिस्टेंस कैलकुलेट होता रहता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस की अप्रोच भी अप्लाई की जाती है फॉर द कैलकुलेट डिस्टेंस। तो इटरेशंस के बाद आपका इस तरह से जो है ना वो ग्रुप्स बन जाते हैं के मीन के अंदर, राइट। हाउ दिस इज हाउ के मीन वर्क्स। सो आइटरेटिव प्रोसेस होता है जो आप उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। के मीन क्लस्टरिंग जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है, ये 3 टाइप के फ्रूट्स हैं, आप ये रैंडम अवेलेबल है डेटा, आप यू हैव अ नॉलेज कि अच्छा, क्योंकि आप जानते हैं सेप कौन सा, आप बता सकते हैं। मॉडल को नहीं पता ना कि ये कौन क्या है, तो बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट्स एल्गोरिथम क्या करेगा, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। सिमिलर एट्रीब्यूट्स टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, उनको ग्रुप कर देगा। तो इस तरह से जो ना वो ये के मीन एलिमेंट्स को ग्रुप कर देता है, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है एसोसिएशन रूल माइनिंग। अच्छा, एसोसिएशन रूल माइनिंग में ये होता है कि आप जो शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, आपकी बास्केट एनालाइज की जाती है। बास्केट, एक कस्टमर एक है जो उसने मिल्क, ब्रेड एंड सीरियल खरीदा है, दूसरे ने मिल्क, ब्रेड, शुगर, एग्स खरीदे हैं, थर्ड ने मिल्क, ब्रेड एंड बटर, एंड फोर्थ ने जो है वो शुगर एंड एग्स जो है वो परचेज किए। अब ये बास्केट की इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई है। अब आप मुझे बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आने वाला कस्टमर है वो मिल्क खरीदेगा, तो उसके साथ कौन कौन सी प्रोडक्ट्स खरीदने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो बेस्ड ऑन दीज बास्केट्स हम ये बता सकते हैं कि मिल्क के साथ ब्रेड जो है वो 71% जो है वो चांसेस हैं वो ब्रेड खरीदेगा। सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, ब्रेड के खरीदने के, क्योंकि ब्रेड जो है वो यहाँ पे 3 बास्केट के अंदर मिल्क के साथ ब्रेड आई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, एग की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे 2 बकेट्स के अंदर जो है वो एग पुट किया गया, एंड देन थर्ड प्रोबेबिलिटी जो है किसी और की। तो इस तरह से जो है ना एप्रियोरी एल्गोरिथम, जो कि एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंडर आता है कैटेगरी के, दैट इज एप्रियोरी एल्गोरिथम, वो जो है इस तरह की बास्केट एनालिसिस कर रहा होता है। The third category is reinforcement learning. This is our
लास्ट टाइप ऑफ द मशीन लर्निंग फैमिली। रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होता है कि आप जिस तरह के बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, या जो हमारे पास पेट्स होते हैं घरों में, उनके साथ खेल रहे होते हैं, पेट्स कोई बॉल फेंकते हैं, अगर वो ले आता है तो हम उसको रिवार्ड देते हैं, तो वो समझ जाता है कि ये ले आने से रिवार्ड मिलता है ना। या बच्चों को हम जब कोई हरकत कर रहा होता है, छोटा बच्चा काम या जो है उसको मना करते हैं, तो उसको या मारते हैं या समझाते हैं, वो रो रहा होता है, कहीं अगर रिवार्ड देते हैं तो वो अच्छा ये मैंने अच्छा काम किया, वो बार बार कर रहा था। सिमिलरली मशीन रीइंफोर्समेंट लर्न के अंदर हम उसको सिखाते हैं मूव करना, अगर वो सही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो उसको हम रिवार्ड असाइन करते हैं। जब उसको रिवार्ड मिलता है ना तो वो समझते अच्छा मुझे यहाँ चलना है, तो रिवार्ड मिलना है तो यहाँ चलना है। अच्छा अगर कहीं गलत मूव करती है ना किसी गलत डायरेक्शन के अंदर तो उसको पेनल्टी लगती है, तो वो रिमेंबर रखती है अच्छा इधर गया था मैं मूव कर रही थी तो मुझे पेनल्टी मिली, इसमें इस तरफ नहीं जाना, तो वो मशीन लर्न कर लेती है अपने आप को। तो अगर ये गेम होती है कि हम इसका जो अपना टारगेट है वो डायमंड तक पहुंचना है, ठीक है, और ये मूव कर रही है, तो ये यहाँ पे जो फायर है वो इसके लिए क्या है, पेनल्टी है, तो ये मूव करेगी यहाँ तक, यहाँ से मूव करके यहाँ फायर, तब पेनल्टी मिलेगी। तो जो भी एक इन्वायरमेंट के अंदर एजेंट मूव कर रहा होता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है बेस्ड ऑन दी इट्स एक्शन, और पेनल्टी असाइन की जाती है बेस्ड ऑन इट्स रॉन्ग एक्शन। तो हाउ दिस रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम वर्क, ठीक है। एक्चुअली ये साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस डेटा सेट के सिमिलर है। अब हम जो है जब डेटा सेट हम अप्लाई करने जा रहे होते हैं, दे रहे होते हैं मॉडल के अंदर, तो जब हमारे पास ओरिजिनल डेटा सेट होता है हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम ट्रेनिंग सेट जो हम मशीन को ट्रेनिंग के लिए देते हैं, और एक होता है टेस्ट सेट जो हम उसको जब मॉडल ट्रेनिंग कर लेगा ना, रूल्स बना लेगा, तो हम उसको टेस्ट सेट देते हैं। अच्छा देखो अब जो तुमने सीखा है वो सही सीखा है नहीं सीखा, ठीक है। अच्छा ये जो है अप्रोच काफ़ी टाइम चलती रही, ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट, लेकिन इससे क्या होगा, जो मशीन है ना वो चीटिंग करने लगी कि वो टेस्ट सेट भी वो ना उसने देखा हुआ था, वो देख रही थी टेस्ट सेट को भी ना, तो वो रट्टा लगा रही थी मशीन। तो बाद में कुछ रिसर्चर ने ये कहा कि भाई आप क्या करें, तीन हिस्सों में डिवाइड करें, ट्रेनिंग सेट और वैलिडेशन सेट, और जो टेस्ट सेट है ना वो इनिशियली आप एल्गोरिथम को दें ही नहीं, टेस्ट सेट आप हमेशा बाद में लोड करें। तो ट्रेनिंग सेट के ऊपर मॉडल की ट्रेनिंग हुई, वैलिडेशन के अंदर वो टेस्ट हुआ, जब मॉडल प्रेडिक्ट फील्ड में गया तो एक नया डेटा उसको एज अ टेस्ट सेट के ऊपर दिया गया, तो फिर उसके ऊपर वो अपनी प्रेडिक्शन बता रहा था। इससे क्या हुआ, आपका मॉडल और अच्छे से जो है वो प्रेडिक्शन देने लगा और जो भी उसके रिजल्ट्स आ रहे थे। अच्छा इसके दौरान मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो जो है कैलकुलेट की जाती है, अच्छा मॉडल है या अच्छा मॉडल नहीं है। बाज़ दफ़ा अच्छे ऐसे मॉडल होते हैं जो ट्रेनिंग के दरमियान जो है ना वो बहुत अच्छी एक्यूरेसी दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो अनसीन डेटा के ऊपर जो उसको जब उसको नया डेटा दिया जाता है तो वो मॉडल जो है वो बैठ जाते हैं, उनके अंदर कोई एक्यूरेसी हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो हमारे पास दो एक कीवर्ड्स यूज होते हैं, बायस एंड वेरिएंस, ठीक है। तो ये हमें ट्रेड ऑफ रखना पड़ता है। ये देखें कि मॉडल के अंदर हाई वेरिएंस भी ना हो और मॉडल के अंदर हाई बायस भी ना हो, ठीक है। मींस के मॉडल के अंदर एक लिमिटेड हद तक बायस और वेरिएंस ट्रेड ऑफ होना चाहिए, लो बायस एंड लो वेरिएंस होना चाहिए। हाई वेरिएंस होगा मींस के देखें जो जो लाइन मॉडल की प्रेडिक्टेड लाइन है वो हर पॉइंट से गुजरती हुई जा रही है ना, ऐसा तो कोई मॉडल हो ही नहीं सकता। दिस मीन्स के इसका हाई वेरिएंस का मतलब ये है कि मॉडल जो है ट्रेनिंग के दौरान 100% एक्यूरेसी दे रहा था, लेकिन जब वो टेस्टिंग पे गया, अनसीन डेटा के ऊपर गया, उसने बिल्कुल लो एक्यूरेसी दिखा दी, 100% से वो 50% पे आ गया, तो वो हाई वेरिएंस होती है। लो बायस के अंदर ये हाई बायस के अंदर ये होता है कि आपका जो डेटा है वो ट्रेनिंग के अंदर भी जो है ना वो लो एक्यूरेसी दिखा रहा है, ट्रेनिंग के अंदर भी ना 40% 30% एक्यूरेसी दिखा रहा है, मींस के सही उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही पॉइंट्स की। तो हम क्या करते हैं, गुड बैलेंस जो है ना वो मैनेज करना पड़ता है कि आप लो बायस और लो वेरिएंस रखना पड़ता है। तो बायस क्या है, बायस इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है, उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है। और वेरिएंस इज परफॉर्मेंस डिफरेंस इन परफॉर्मेंस ऑन द ट्रेनिंग सेट वर्सेस ऑन द टेस्ट सेट, ठीक है, कि जब आप ट्रेनिंग के दरमियान एक एक्यूरेसी होती है और टेस्ट के दरमियान एक्यूरेसी आपकी बिल्कुल डाउन चली जाती है। दिस इज हाउ बायस एंड वेरिएंस वर्क। So we generally want to minimize both bias and variance to build a good model, ठीक है, और हमें जो है इसके दरमियान ट्रेड ऑफ रखना पड़ता है।
अच्छा, तो बाज़ दफ़ा आपके पास डेटा सेट जो होता है ना वो बहुत उसकी साइज़ छोटी होती है, और तो आपका जो मॉडल, दिस इज़ अ ग्रीन लाइन व्हिच रिप्रेजेंट द मॉडल, और वो आपकी डेटा की सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही होती। तो बाज़ दफ़ा रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे होते और हम कहते हैं कि हाई बायस है, हाई बायस की वजह से जो है ना वो रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन बाज़ दफ़ा इशू बायस का नहीं होता, बाज़ दफ़ा इशू होता है आपकी डेटा की साइज़ बहुत स्मॉल होती है। आपको डेटा को इनरिच करना पड़ता है, डेटा की साइज़ बढ़ानी पड़ती है। उससे क्या होता है कि फिर आपका जो है मॉडल और अच्छा जनरलाइज़ हो जाता है। जिस तरह से आप डेटा की साइज़ बढ़ाते जाते हैं तो और अच्छे से वो मॉडल जनरलाइज़ हो जाता है। सो आप डेटा सेट की साइज बढ़ाने से भी आप अच्छे से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं एक्यूरेसी। अच्छा, एक और अप्रोच अप्लाई की जाती है, डेटा सेट भी बढ़ा दिया लेकिन फिर भी एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो एक एक कॉन्सेप्ट किया जाता है कि क्योंकि हमने डेटा को डिवाइड किया हुआ है, ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट, टेस्ट सेट, और जो हमारी एक पर्टिकुलर क्लास थी जिसकी सही से एक्यूरेसी नहीं आ रही है, और वो पर्टिकुलर क्लास की जो मेजर रिप्रेजेंटेशन थी ना वो टेस्ट सेट में चली गई थी। अब जो टेस्ट सेट में चली जाए मीन्स के आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, कैटेगरी ए के 10 एग्जाम्पल्स हैं, कैटेगरी बी के 10 एग्जाम्पल्स हैं, कैटेगरी सी के 10 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और आपने जब टेस्ट सेट, वैलिडेशन सेट और ट्रेनिंग सेट डिवाइड किया तो कैटेगरी सी के जो 8 एग्जाम्पल है ना सपोज, वो ट्रेनिंग में चले गए, सॉरी टेस्ट सेट में चले गए, वो उन एग्जाम्पल्स की ट्रेनिंग हुई नहीं है सही से, तो वो मॉडल क्या करेगा, सी को जो है ना वो सही से प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक टेक्निक प्रपोज की गई गई है कि आप के फोल्ड टेस्टिंग जो है यूज करें। के फोल्ड टेस्टिंग क्या होता है कि आप जो है वो अपने डेटा सेट के जो है ना मल्टीपल चंक्स बनाते हैं, तो एक चंक आप वैलिडेशन के लिए रखते हैं, रिमेनिंग चंक के ऊपर आप ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइज में साइकिल में जो पहले टेस्टिंग में था अब वो ट्रेनिंग का पार्ट बन जाएगा, और एक और जो है वो टेस्टिंग का पार्ट। तो सिमिलरली जो है ना इस हिसाब से हर एक चंक जो है पहले ट्रेनिंग में होगा, बाद में टेस्टिंग में होगा, ट्रेनिंग टेस्टिंग। इस हिसाब से क्या होगा, पूरा डेटा सेट जो है वो ट्रेनिंग का पार्ट भी बन जाएगा और टेस्टिंग का पार्ट भी बन जाएगा। ये जो है वो बेस्ट अप्रोच है टू मैक्सिमाइज द इफिशिएंसी ऑफ द मॉडल, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक है तो हाउ टू सॉल्व मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स या डेटा साइंस प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, हाइपोथेसिस जैसे मैंने शुरू में बताया था, अगर आपने कैटेगराइजेशन करनी है कि ये ए होगा या बी होगा, तो आप बगैर झिझक जो है ना क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के ऊपर चले जाएं, और आप कहते हैं कि इट इज़ अ डिफरेंट मीन्स के एनॉमली डिटेक्शन वगैरह कर रहे हैं, या एक सिंगल क्लास क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप एनॉमली डिटेक्शन एल्गोरिथम के ऊपर चले जाएं। हाउ मच या हाउ मेनी, ठीक है, क्वांटिफायर और कंटिन्यूअस वेरिएबल प्रिडिक्शन है तो आप रिग्रेशन एल्गोरिथम के ऊपर चले जाएं। हाउ इज दिस ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज अ क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, ग्रुपिंग के अंदर चले जाते हैं आप। और व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, ठीक है। तो दिस इज आपके इस तरह के अगर आप सवालात हैं, आपके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप इंडियन एल्गोरिथम के तरह तो जा सकते हैं। ये एक छोटा सा एक सिनेरियो है मॉडल सिलेक्शन के हवाले से। और ये चीट शीट्स अवेलेबल हैं मशीन लर्निंग की, कि आपका किस टाइप का डेटा है तो वो आपको बता देता है, रूट बता देता है आपको किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन रिडक्शन है तो इस तरफ जाएं, नहीं है तो फिर आगे जाएं। लेबल डेटा है तो आप नीचे चले जाएं, क्लासिफिकेशन नहीं है तो आप इधर अनसुपरवाइज में चले जाएं। सिर्फ इस तरह की जो ना पाथवे होता है फॉर दी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, डेटा की विजुअलाइजेशन के लिए आपको किस तरह की विजुअलाइजेशन करनी है, उसके लिए चार्ट्स सजेस्टेड हैं, ये भी शीट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। कंपैरिजन करना है, रिलेशनशिप निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, यहाँ कंपोजिशन निकालनी है, तो डिफरेंट चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। इससे ये गाइड जो है आप ले सकते हैं। ये डेटा साइंटिस्ट के जो है टेबल के ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर ये सारी पिक्चर्स लगी रहती हैं ताकि वो एक्चुअली फ़ौरन एक गाइड ले सके। चाहे 2 वेरिएबल डिस्प्ले कराना, स्कैटर प्लॉट है, 3 वेरिएबल्स हैं तो बबल चार्ट्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं। Similarly, this is the same cheat sheet for the Microsoft Azure machine learning algorithm. Azure के अंदर जो आपके पास मशीन लर्निंग की रिपोजिटरी है तो वहाँ पे आप, तो वो पेड है, फ्री वर्जन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, आप ये एल्गोरिथम वहाँ पे भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंस का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। और जो डेटा सेट अगर आप इनिशियल है और
हेलो टू वर्ड जो है आ रहे हैं डेटा साइंस के अंदर, तो जाहिर सी बात है आपको एल्गोरिथम्स रन करने के लिए डेटा सेट्स चाहिए। तो ये मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है, केगल के ऊपर आपके पास डेटा बेस अवेलेबल हैं, माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेट अवेलेबल हैं, गूगल के डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। आप गूगल डेटा सेट्स लिखेंगे ना तो गूगल की रिपोजिटरी खुल के आ जाएगी। ये बहुत मशहूर है यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, यहाँ पे बहुत सारे डेटा सेट जो हैं वो अवेलेबल हैं। साइकिट लर्न के अंदर भी डेटा सेट आपके पास अवेलेबल हैं, और AWS सर्वर के ऊपर भी डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। आप ये यहाँ पे जाएँ, सर्च करें और डेटा सेट उठाएं और एल्गोरिथम रन करें, आपको आसानी से एक एक्सपेरिमेंट रन हो जाएंगे। टेक्नोलॉजीज जो टूल्स हैं जिनके ऊपर हम ये डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम रन कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामर हैं, टेक्निकल हैं, तो आप जो कोडिंग करना चाह रहे हैं तो कोडिंग के लिए जो है आप साइकिट लर्न पे चले जाएं, ठीक है, कोलैब पे चले जाएं, अज़्योर मशीन लर्निंग पे चले जाएं, गूगल AutoML पे चले जाएं, और एनाकोडा ये उनके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और पाइथन सपोर्टेड है ये सारे। अगर कोई लैंग्वेज अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू नहीं करना चाह रहा डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस अप्लाई, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाह रहा है, ठीक है ना, कि उसको प्रोग्रामिंग ना करनी पड़े, जस्ट स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन, जो ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स होते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए K9 आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, K9। दिस इज वेका इज आल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप एल्गोरिथम, ठीक है। एंड उसके बाद जो है अज़्योर के अंदर भी जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन अवेलेबल होता है। एनाकोंडा के अंदर जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, एक आपके पास टूल है Orange 3 इज आल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप टूल, जो प्रोग्रामर नहीं है वो भी डेटा साइंस यूज कर सकते हैं थ्रू दीज टूल्स। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं। आज चाइना के अंदर जो है वो चालान भी जो है वो ऑटो मशीन लर्निंग के थ्रू जो है चालान हो रहा था। इवन लाहौर के अंदर भी जो है ना ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है, आपकी जो रिकग्नाइज हो जाती है कैटेगराइजेशन के थ्रू। और बहुत सारे और एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है ना वो जो है लगाई जाती हैं इमेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम, डीप लर्निंग के थ्रू जो है ना इनकी प्रोसेसिंग हो रही है। बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज हो रही है मशीन लर्निंग और डेटा अपना साइंस, मेजरली डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट। उसके अंदर जो है वो कस्टमर एनालिसिस कर रहे हैं, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू प्रोडिक्ट कर रहे हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन कर रहे हैं, किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, किसको क्रेडिट कार्ड देना है, किसको नहीं देना है। ये सारी जो है ना रियल टाइम के ऊपर जो है ना प्रेडिक्टिव एनालिसिस वो लोग कर रहे हैं बैंकिंग के अंदर। स्पोर्ट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है डेटा साइंस अप्लाई हो रही है। जर्मनी के अंदर जो है वो फुटबॉल की जितनी भी ग्राउंड्स हैं वहाँ पे जो है ये कुछ टीम जो क्लब्स हैं वो फ्रेंचाइज डेटा साइंस यूज़ कर रही हैं, उन प्लेयर्स की प्लेसमेंट जो है वो डिसाइड कर रहे हैं थ्रू डेटा साइंस एनालिसिस। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, आप जाते हैं कुछ भी सर्च करते हैं, आप देखते हैं कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना वो आपको एड नज़र आ रहे होते हैं। आप कुछ भी सर्च करें उसी के ही आपको बार बार दिखाए जाते हैं। इवन फेसबुक पे भी आप चले जाएं, आप एक वीडियो ओपन करते हैं तो फ़ौरन जो है ना आपको उसी टाइप की वीडियोस लिस्ट डाउन हो जाती हैं सिमिलरली। तो एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट दी डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, कि किस तरह से जो है ना वो आपको डेटा को रीड करके आपके बिहेवियर्स को देख के आपको सजेस्ट कर रहे हैं अपने कंटेंट्स और एड्स। हेल्थ केयर के अंदर जो है वो सिमिलरली मेडिकल इमेजिंग या ट्यूमर डिटेक्शन के ऊपर जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। ये एक चाइना के अंदर किया गया था। ये जो ट्यूमर डिटेक्शन है ये सपोर्ट वेक्टर मशीन के थ्रू क्लासीफाई किया गया है। तो मेडिकल फील्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। स्पीच रिकग्निशन है, जो आपका गूगल का वॉइस असिस्टेंट है वो आपकी कमांड सुन के जो है ना वो आगे प्रोसेस कर रहा है, आपको क्लासीफाई कर रहा है। आप अपना लॉक लगाते हैं मोबाइल के ऊपर स्पीच रिकग्निशन का, उसका भी जो है वो ये आप जो है असिस्टेंट के थ्रू रिकग्नाइज हो जाते हैं। इंटरनेट सर्च है, आप लाजमी गूगल सर्च करें या बिंग है या और बैडू सर्च है, बहुत सारी सर्चेज अवेलेबल है। आप जो भी सर्च करते हैं आपको फ़ौरन एक सर्च कैटेगरी सजेस्ट हो जाती है। दिस इज़ ऑल मशीन लर्निंग। और गूगल ने तो बहुत ही ज़्यादा जो है जो मशीन लर्निंग की ट्रीज जो है वो इनेबल की हुई है अपना उसके सर्च के ऊपर। सिमिलरली रिकमेंडर सिस्टम्स अवेलेबल हैं। आप अमेज़ॉन या जो भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की, आप जैसे ही कोई एक लिखते हैं, अगर मैं लिखता हूँ मशीन लर्निंग की बुक, तो मुझे जो ना डिफरेंट रिकमेंडेशन सजेस्ट कर देता है। फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, जो आपने बुक सर्च की है ये उसके साथ साथ जो है ना ये बुक भी खरीदी जा चुकी हैं। कस्टमर हु व्यूड, जो मैंने सर्च की हुई वो बुक, तो उन्होंने ये वाली बुक्स भी देखी हुई हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली बुक्स हैं, तो वो रिकमेंडेशन की कैटेगरीज बना रहा है। तो रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर भी जो ना बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। गेमिंग के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ये
मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग यूटिलाइज हो रही है। बहुत सारी गेमिंग कंपनीज जो हैं वो यूज़र्स के एक्सपीरियंस को बेटर कर रही हैं। आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं, आपका जो पहली लेवल का एक्सपीरियंस था उसको इनेबल कर रही है नेक्स्ट लेवल के ऊपर। तो सोनी है या नाइनटेंडो है या एक्टिविज़म है या EA स्पोर्ट्स, जितनी भी कंपनीज हैं गेमिंग की, उन्होंने जो है AI को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ऑगमेंटेड रियलिटी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है ऑनलाइन ई कॉमर्स के अंदर भी यूटिलाइज हो रही है। आप जो है पिक्चर्स के थ्रू आप एक कमरे की पिक्चर लें और वहाँ पे अगर आप डाइनिंग या कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आपको दिखा के आपको सेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो एप्लीकेशन ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जो है यूज़ हो रही हैं। या जो VR बॉक्स हम पहनते हैं और सी ऑल है, खुद को हम वहाँ पे अंदर एग्जिस्ट फील कर रहे होते हैं। सिमिलरली सेल्फ ड्राइविंग कार, आपका जो ड्राइविंग बिहेवियर है उसके बेस के ऊपर जो है वो जो गाड़ी जितने भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उस गाड़ी को ट्रेन किए जाते हैं, उसके बेस पे जो है वो गाड़ी जो है खुद ऑटोमेटिकली चल रही होती है। दिस इज ऑल ड्यू टू दी डेटा साइंस। एंड सिमिलरली रोबोट्स, अगर मैं आपको कहूँ कि जो है गूगल डुप्लेक्स को सर्च करके देख ले। गूगल डुप्लेक्स इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दी रोबोट्स एंड द वॉइस असिस्टेंट, जो कि आपको जो है एग्जांपल बता रहा होगा डेटा साइंस का। एंकर पर्सन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो न्यूज़ के ऊपर आ रहे हैं, वो उनको न्यूज़ फीड की जाती है और वो रोबोट जो है वो न्यूज़ पढ़ रहा होता है, सारी चीज़ें ना। तो दिस इज ऑल डेटा साइंस एप्लीकेशन। मैंने जस्ट चंद लिस्ट की हैं, बहुत सारी वेस्ट कैटेगरीज के अंदर जो है वो ये एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। सो दिस इज ऑल एंड होस्ट काइंडली इनेबल दी QA सेशंस। अगर किसी को सवाल है तो लेट मी नो, वी विल डिस्कस हियर। Thank you very much, sir. It was a very informative session, and I'm sure that everyone else in this meeting feels the same way. If anyone has any questions, kindly raise your hand so we can unmute you, or type the question in the chat box along with your name and affiliation. Sir, we do have a few questions in the chat box. First, the question is, what is the difference between reinforcement and semi-reinforcement learning? एक्चुअली सेमाई के अंदर जो है वो थोड़ा सुपरवाइज पार्ट ऐड किया जाता है। सेमी रीइंफोर्समेंट लर्निंग मीन्स के फुली रिवॉर्डेड नहीं होती, कुछ रूल्स भी इम्बेड किए जाते हैं। जो ग्राउंड होता है ना हमारे पास, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई कैन शो यू। ओके, ये जो आपका ग्राउंड इन्वायरमेंट सेट किया जाता है ना, तो रीइंफोर्समेंट के अंदर जो है ना ये ग्राउंड एम्प्टी होता है और जहाँ पे रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज होते हैं वहाँ पे वैल्यूज रखी रहती हैं। लेकिन सेमी रीइंफोर्समेंट के अंदर जो है ना इस रोबोट के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ बॉक्स एस के होंगे, कुछ बॉक्स जो है वो एक और वेरिएबल के होंगे, वाई के होंगे ना, तो उसको अवेलेबल है कि तुमने एस के थ्रू ही मूव करना है, वाई के थ्रू नहीं करना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन रोबोट के पास अवेलेबल होती है, उस हिसाब से वो कर देन उसके बाद वो रिवार्ड वाला सिस्टम आ रहा होता है। All right. Thank you, sir. Sir, there is one more question. What is the scope of data analytics in smart grid engineering? Kindly repeat again. Sir, a student has asked, what is the scope of data analytics in smart grid engineering? Sir, the question is in the chat box as well. Okay, let me okay, chat box. Data science with machine learning, okay. Data science, okay. Field. Okay, what is the scope of data analytics in smart grid engineering? Okay, I don't have a domain knowledge about the smart grid engineering, so I couldn't. लेकिन ये है कि अगर उस फील्ड के अंदर डेटा अवेलेबल है स्मार्ट ग्रिड के अंदर, ठीक है, तो डेटा साइबर फिजिकल सिस्टम्स के अंदर जो है वो अप्लाई किया जाता है डेटा साइंस, और ग्रिड के अंदर जो है मे बी हो, लेकिन डोमेन की इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, तो मे बी आई कुडंट हेल्पफुल इन दैट।
All right, thank you, sir. There is one more question in the chat box. Is data science field helpful in e-commerce as well, as there are business analysis included in both cases? बिल्कुल. Okay. Thank you, everyone. Now we will have a quiz for about 10 minutes. Please don't leave the meeting. Proceed with your quiz. And later on, we will be providing the token of appreciation to our esteemed speaker. The quiz will now commence. Please, everyone, click on the link and start your quiz. It will be for 15 minutes. The link has been shared in the chat box as well. Everyone kindly stay in the meeting, and we will come back after 15 minutes once the quiz time is over.
Once again, Assalamu alaikum, everyone. I hope all of you attempted the quiz. We would now like to present a little something, a small token of appreciation for our esteemed speaker. On behalf of all the participants and our entire organizing body, we would like to thank you humbly for joining us today and giving us your time. It was an honor for us. Thank you so much. Thank you to all. Thanks to all, and thanks to PF Ranch and all the participants who have attended. I hope you will learn something from here. Definitely, sir, and Thank I'm you. sure everyone feels the same way. We would also like to thank our participants for joining us today and showing interest in our events. So thank you once again and goodbye for now. Allah Hafiz. Allah Hafiz.